Hmm. So just listing down the steps that we'll try to follow. So first is an abstract problem statement which is given to us, and then clarification questions. So typically you should take first 5 minutes. ये एक interview का है. So first 5 minutes you should take to ask the clarification questions. So just to मतलब so since the problem statement would be very abstract, like say design book my show, but then what is book my show? What all features that you should cover? What is expected? What all kind of users would be there? ये सारा चीज जो है ये clarification question में आना चाहिए. So this is basically this step is very important because the interviewer tries to see that can you think out loud and think in about all the dimensions of the product. Then उसके बाद use cases है. So use cases is basically so if you identify that there are 2-3 kind of users, एक so for all the users you should ask कि क्या क्या feature बनाना है और वो सब. So once you decide on the features, then you build the components. आप कंपोनेंट बना लो जैसे कि यूजुअली हो जाएगा एक बिलिंग का एक कंपोनेंट हो जाएगा, एक शायद टिकटिंग हो जाएगा, एक बुकिंग का हो जाएगा, एक यूजर इंटरफेस हो जाएगा, एक कोई एडमिन इंटरफेस हो जाएगा. तो इस तरह से डिपेंडिंग ऑन कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं डिफरेंट काइंड ऑफ कंपोनेंट्स होंगे. Then you can draw the block diagrams of all those components and उसके बीच में interaction दिखा सकते हैं in the next step कि आपस में ये सारे component जो हमने build किए वो आपस में कैसे interact कर रहे हैं. और उसके बाद फिर इनके जब ये interaction diagram kind of बन जाएगा इनके बीच में, then you know that then you kind of also know कि which component will be exposing what all kind of APIs. At least high level पे ये clear हो जाता है. So this is basic part of HLD. उसके बाद some of the things that might be expected to cover in HLD itself is आपका kind of like as I said lightweight REST contract. उसके बाद आप टेक स्टैक कौन सा यूज करोगे. सो मे बी इन टेक स्टैक्स दे आर नॉट आस्किंग यू एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी की कौन सा यूज करोगे, बट थिंग्स लाइक कि मैं यहाँ पे नो सीक्वल डेटाबेस को यूज करूंगा, या यहाँ पे मैं कोई मैसेजिंग क्यू यूज करूंगा, लाइक दैट. And then you can also talk about the NFR side of it, like what is the scale that you are trying to solve. Just typically, if you are asked that build a highly scalable payment system, then you can start with some number. Say I will try to address 1 billion number of payments transaction in a single day, and then you bottle down that what is the QPS that you require, and if you to build for that kind of QPS, what are the tech stacks that you will need. I mean, all those kind of things that all will be covered in the NFR. So this will be the HLD part. उसके बाद अगर LLD होता है and you are asked the LLD, then LLD में you have to basically जो अभी component बनाए थे हमने HLD में, so you can zoom in or in one of the components. So either the interview gives you that okay you can do the HLD of this particular component, or he can ask you to choose a component by yourself. So you typically choose one of the prominent components जो उस feature का होगा, and then you start doing the ER modeling of that. Basically सबसे so first thing would be to list down all the entities कि आपके कौन कौन से एंटिटीज हैं. जैसे टिपिकली बुक माई शो में आपका हो जाएगा यूजर एक एंटिटी हो जाएगा, आपका बिल एक एंटिटी हो जाएगा, टिकट एक एंटिटी होगा, पेमेंट या अकाउंट इस तरह का कोई एंटिटी होगा. तो इस तरह के डिफरेंट एंटिटीज यू विल बिल्ड एंड देन यू डू दी ER मॉडलिंग, और उसके बीच में रिलेशनशिप बनाते हो कि आप 1 to 1 या 1 to many किस तरह से आपस में वो एंटिटीज इंटरैक्ट करते हैं. So once you have decided these entities, then you can draw the class diagram of those. So what I mean by class diagram is कि listing down the attributes of all these entities that we just discussed कि किसके क्या क्या attribute होंगे. जैसे जैसे यूजर है तो उसका एक आईडी होगा डेफिनेटली, उसके बाद उसका यूजर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम होगा, एंड देन मे बी उसका एड्रेस हो सकता है, उसका अकाउंट नंबर हो सकता है, इस तरह की चीज़ें वी विल लिस्ट डाउन. एंड देन आपका फिर उसके बाद देन यू कैन डिसाइड दी, अगर आपका नो सीक्वल सीक्वल अप्रोच कर रहे हो तो यू कैन गो वेरी लो लेवल एट दी स्कीमा डिजाइन की क्या स्कीमा होगा उसका, एंड टिपिकल एंड सिमिलरली बाकी जो भी डेटाबेसेस है उसमें.
उसके बाद आपका रेस्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होगा, देन यू कैन लिस्ट डाउन एग्जैक्ट रेस्ट कंपोनेंट, रेस्ट एंड पॉइंट्स की ये रेस्ट एंड पॉइंट यहाँ पे इस कंपोनेंट का ये रेस्ट एंड पॉइंट्स है, ये सारी सर्विसेज जो है ये कंपोनेंट एक्सपोज करेगा. यस, आई थिंक दिस शुड डू, दिस मच शुड डू. बाकी आप लोग के कोई पॉइंट्स हैं तो आप बता दीजिए. हेलो. Yeah. सर या फिर Yeah, so मेरा कुछ points है इस पे. So as part of this complete design thing, right, we also need to have this security aspect of the system and the maintainability of the system. So it's like how we are going to support that feature in long term way. These two things also maybe we need to come off, and then yeah, that's that. सिक्योरिटी एंड मेंटेनेबिलिटी पता नहीं, आई डोंट नो, मतलब मैंने नहीं कवर किया किसी सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू. Yeah, but that will come under NFR. Agar if interviewer looking for, then you can confirm that requirement in NFR. Are you looking for these things or not? ठीक है, बाकी लोग क्या व्यूज है? रोहित सर. I joined from NFR, तो मुझे उसका पहले का कॉन्टेक्स्ट पता नहीं है कि कितना डिस्कशन हो चुका. So मैं अभी थोड़ा सुन लेता हूँ, उसके बाद बताएंगे. ओके. थोड़ा मेरा एक पॉइंट है कि आई थिंक जो भी टेम्पलेट है, वेदर वी फॉलो द टॉप डाउन और वेदर वी फॉलो दैट बॉटम अप, सो इवन यू फर्स्ट डिसाइड दैट मे बी व्हाट आर द इंटरफेस, then you design that flow, how that component will interact, or whether you decide entity and then how that entity will interact with flow. So I think mix करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए. नहीं मिक्स क्या, सो गौरी मतलब, सो एज आई स्टार्ट राइट, हम लोग जैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं, देन वी आस्क दी क्लैरिफिकेशन क्वेश्चंस, राइट. उसके बाद क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन के बाद यू टिपिकली हैव एन सर्टेन आइडिया कि कौन कौन से फीचर्स बनने होंगे इसमें, राइट. सो यू स्कोप आउट की, फिर स्कोपिंग आउट करना पड़ेगा बिकॉज डेफिनेटली विल नॉट बी एबल टू कवर ऑल द फीचर्स. तो फिर स्कोप आउट करने के बाद देन यू हैव सर्टेन आइडिया कि हाँ ये कंपोनेंट्स होंगे, राइट, जो फीचर्स बनने हैं उसके बेसिस पे. तो यही स्ट्रक्चर फॉलो होगा ना. बॉटम अप कैसे कर सकते हो इसमें, टॉप डाउन ही होगा. नहीं, और फीचर्स मींस आई थिंक पहले एपीआई डिसाइड करेंगे, देन फ्लो डिसाइड करेंगे, या फिर पहले एंटिटी देन वी कंपोनेंट एंड देन वी सी कि कैसे क्या एपीआई डिजाइन करेंगे. आई थिंक मतलब एंटिटी बन जाएगा. जैसे कंपोनेंट अगर हाई लेवल का बन गया, मतलब हमने क्या क्या लिखा है इसमें, व्हाट वी आर फॉलोइंग इज की यूज केसेस के बाद वी ड्रॉ दी कंपोनेंट्स. ठीक है, वी स्टार्ट करते देन वी सी हाउ. ठीक है. वन मोर पॉइंट, आई थिंक थोड़ा फेल ओवर पार्ट पे, फेल ओवर रिकवरी या सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ना हो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हर डिजाइन में. ओके, ठीक है. तो ये आपका ये एचएलडी में आएगा, एलएलडी में आएगा? एचएलडी में ही आ जाएगा, मतलब, लेकिन क्योंकि सब लोग ये एक्सपेक्ट बहुत करते हैं कि ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर तो नहीं है, या ये बॉटलनेक तो नहीं बन जाएगा टाइप्स. ओके, तो आपका फिर इसमें डाल सकते हैं हम लोग टेक्स्ट टैग्स, एनएफआर, उसके बाद उसमें डाल लो, एनएफआर में डाल लो, कहीं डाल लो. लेकिन आई थिंक दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट कि काफी जगह पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट है. या फेल ओवर मैकेनिज्म क्या है, जब फेल होगा तो तुम्हारा फॉल बैक मैकेनिज्म क्या क्या है, एम्प्लॉय करते हो जो, वो डिस्कस करने चाहिए. ओके. If we are going into those details, तो फिर मेरे हिसाब से फिर वहाँ पे कैशिंग लेयर्स, कैशिंग तो आएगा ही आएगा, कैशिंग तो आएगा. ट्रू. कैशिंग तो सर आपके इसी में आ जाएगा ना, when you are deciding the components, right? Usually when we decide the components we miss out because we follow the common flow. Okay. इसलिए we tend to miss out on caching. Okay. ठीक है, so I'll write as a मतलब वहाँ पे एक FYI टाइप कि जहाँ पे डेटाबेस पे चॉइस कर रहे हो वहीं पे कैशिंग पे भी वहीं फोकस कर लो. हाँ. और there was something that you were talking about, entity recognition. Year, हाँ. Entity relationship. Entity relationship, पहले entity identify करनी पड़ेगी, उसके बाद relationships establish होंगे. Right. So what was the point around how do we identify the entities?
सर so since you know कि क्या components हैं system के, so then you know कि it's easier to define कि हमारे इसमें कौन-कौन से entities होंगे, right? जैसे बुक माई शो का एग्जांपल लिया था हमने, so बुक माई शो में you know कि आपके टिकट्स होंगे, आपके बिल्स होंगे, आपके सीट्स होंगे, एक so आपके स्क्रीन्स होंगे बेसिकली, स्क्रीन्स के अंदर you will have different slots, all these could be entities, right? हाँ, तो to simplify this entity process, बहुत सिंपल सा तरीका होता है to identify the entities and not miss out on the entities. Okay. Best way is write a sentence. जैसे user wants to book a ticket. Okay. ठीक है, तो जितने भी nouns हैं वो सारी entities हैं और जो भी verbs हैं वो उनके actions हैं. Okay. हाँ. User should be able to select a screen. तो user entity हो गया, screen एक entity हो गया, selection एक action हो गया. ठीक है. So this is one of the very easy ways जिससे आपकी सारी entities define हो जाती हैं. Besides, वो क्या होता है कि इसमें आपको clarification questions भी मिल जाते हैं interviewer से, as you are defining the problem statement. So this is something that I believe should be the first step, जहाँ clarification हो रहे हैं questions के. मतलब sentences create कर ले. Correct. जब problem statement लिख रहे हो, define कर रहे हो, उस time पे you list down each action item कि क्या-क्या user, मतलब जो भी है problem है, उसको as soon as you create a sentence, उसमें जितने nouns हैं वो सब entities हैं, verbs उनके actions हैं. Simple. उसके बाद आपको entity recognition में कोई problem कभी भी नहीं आएगी. ठीक है. ठीक है, और any other point anybody? Let's start then. Today's discussion start करते हैं. बस एक और पॉइंट बताना है, just one more point. जो अभी कह लो कि मैं यहाँ Amazon में इतने टाइम से अभी डॉक्यूमेंट लिख रहा हूँ, पिछले 4 महीने से अपनी प्रॉब्लम जो कर चुका हूँ, उसमें द फीडबैक, कंटिन्यूस फीडबैक जो है वो ये है कि योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट should be well defined such that your solution automatically defines it. आपके सॉल्यूशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट में अगर डिस्कनेक्ट होगा तो आप खुद भी नहीं समझ पाओगे और जो समझाने की कोशिश कर रहे हो वो भी नहीं समझा पाओगे. तो ठीक है, बेसिकली क्लैरिफिकेशन क्वेश्चंस का आप स्टेप कह रहे हो ना. मेरा मतलब द होल फोकस शुड बी इन द इनिशियल फेज अर्लियर, मतलब उसमें ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि बाकी सबका डायग्राम्स, फ्लोज ऑलमोस्ट सिमिलर आने लगते हैं ऑटोमेटिक. जो 5 से 7 सिस्टम डिजाइन्स हैं जो कहीं ना किसी में वो फिट हो जाएगा. ओके, ठीक है. सो मूविंग ऑन, ये एक बार स्टेप्स लिस्ट कर लें क्या, या फिर विल जस्ट फॉलो इट? हाँ, मतलब बेसिकली यही है कि आई थिंक जो यूज़ केसेस लिखना भी एक मतलब कि आर्ट है. दैट आई थिंक अमेजॉन बिलीव्स कि यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम कस्टमर देन थिंक बैकवर्ड्स. So अगर if you are writing that use cases, always think that what user exactly wanted to do, and that you then after you should start how to design your software. Okay. ठीक है. सो अभी और स्टार्ट करते हैं फिर. आई थिंक राइट वी आर डन विद जॉटिंग डाउन दी स्टेप्स. हेलो पुंडरी सर, आप म्यूट पे बात कर रहे हैं क्या? हाँ, पुंडरी सर म्यूट बोल रहे हैं. कुणाल मॉडरेटर बन जाओ, ठीक है? थोड़ा सा सब एक साथ बोलेंगे तो कुछ कंफ्यूजन हो जाएगा. ठीक है. तो चैट विंडो अगर कुछ हमें स्पेशल कहना है तो ओके. बट इसमें फिर मतलब काइंड ऑफ हाउ डू वी राइट डाउन, जैसे व्हाइट बोर्ड पे तो आसानी से हो जाता था. ये तो चैलेंज है. स्क्रीन शेयर कर सकते हो. हाँ, स्क्रीन शेयर कर लो. स्क्रीन शेयर करके गूगल डॉक बना लेते हैं. हाँ, दैट्स गुड आइडिया एक्चुअली. बेस्ट है. रिकॉर्डिंग का पार्ट हो वो ये इंश्योर कर लेना.
इसी में कुछ हाँ रिकॉर्डिंग तो आई थिंक हो रही है राइट? नहीं वो डॉक्यूमेंट दिखेगा ना हमें, मतलब हाँ वो आपकी जो स्क्रीन पे जो भी रहेगा आई थिंक वो रिकॉर्ड होगा। हाँ तो वो देखो, चेक करो तुम्हें डॉक्यूमेंट शेयर करो ना पहले, तब पता पड़े। प्रेजेंट मोड में आओ। मैं चलो बढ़िया, हाँ ये सही है। ठीक है, तो एक रफ नोट काइंड ऑफ आई विल स्टार्ट टेकिंग सो पीपल कैन जॉइन इन, मतलब जंप इन। तो ऐसा ही करेंगे राइट? सो टुडेज प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज यूट्यूब सिस्टम डिजाइन। सो लेट्स फॉलो द स्टेप्स एंड स्टार्ट डूइंग इट। थोड़े से टाइपोज होंगे बट दैट्स फाइन, आई विल करेक्ट इट लेटर। ठीक है, सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद समबडी हु हैज नॉट स्पोकन, दैट बेटर रहेगा। ठाकुर सर अभी कंटिन्यू करो, मैं बीच में पॉइंट दूंगा। ओके यहाँ पे रोहित को इनपुट लेते हैं क्योंकि उसने एक बहुत अच्छा अप्रोच सजेस्ट किया था नाउन्स और एक्शंस वाला, तो दैट शुड बी द बिगिनिंग स्टेप, तो लेट रोहित जंप इन कि यूट्यूब में क्या क्या मतलब बेसिक पॉइंट्स हैं, लेट्स कवर अप। हाँ, या फिर वो पॉइंट की व्हाट कस्टमर्स वांट, कि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या चाहिए यूट्यूब में। हाँ श्योर। Problem statement we can stand, user is able to view videos. राइट। कुणाल लिखो भाई। ओके User is able to upload videos. User is able to create playlist. ओके View suggestions. यस और उसमें फर्स्ट पे आ सकता है मतलब लॉगिन। ठीक है, लॉगिन वाला और मैनेजमेंट हो जाएगा पूरा। अदर प्लीज म्यूट, देयर सम डिस्टर्बेंस फ्रॉम सम। Another one is user is able to kind of like dislike video. User is able to share that video. लाइक डिसलाइक एंड शेयर, ओके लाइक डिसलाइक तो अब ओके। User should able to see the view count, व्यू काउंट ऑफ द वीडियो। and user should be able to adjust that क्या कहते हैं उसको, bandwidth, the Quality of video. quality of video. हाँ ठीक है, बैंडविड्थ हो गया। Create channels. क्रिएट चैनल्स And user should be able to लाइव forward and Monetize. backward. क्या फॉरवर्ड बैकवर्ड क्या था? Forward अच्छा, backward video अच्छा streaming. प्लेयर कॉन्फ़िग ना, प्लेयर कॉन्फ़िग में आपका वो फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड 10 सेकंड्स का जो फॉरवर्ड आता है। Monetize. हाँ मोनेटाइज, Live streaming. Moderation, लाइव स्ट्रीमिंग। moderation of the videos. हाँ तो And correct. Now this is a very good point. Moderation. So who Moderation. does the moderation? So that's why I'm saying complete sentences. yeah, basically YouTube administrator should moderate. एडमिनिस्ट्रेटर नहीं कर पाएगा धीरज, नॉट स्केल, वोंट स्केल। Some there should be some User with automatic. special privilege, you can say. User, the system भी हो सकता है कोई भी. It can be user or a system. हाँ. Yeah. So system does moderation. यूजर और Yeah. सिस्टम डज मॉडरेशन। ठीक है. That's why I was saying complete sentences. तो उसमें noun एक जरूरी है. कोई भी action है तो उसमें noun होना है. Yeah. ओके And और कोई and पॉइंट? आई थिंक user should be able to view the video from different devices. डिवाइस सपोर्ट। तो अभी क्या करते हैं ना, let's
डिफाइन द स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम आल्सो। ये तो बहुत हाई लेवल हो जाएगा, इतने सिस्टम्स उसमें आ जाएंगे, इतने कंपोनेंट्स आ जाएंगे कि यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट आल्सो। सो राइट रोहित सर, दैट्स द सेकंड स्टेप आई थिंक। अच्छा ठीक है, सेकंड स्टेप में स्कोप डिफाइन कर लेंगे या हाँ, सो इससे पहले आई थिंक यूज केस है एंड देन वी कैन गो टू स्कोपिंग आउट। वी कैन से दैट इससे इतना ही कवर कर पाएंगे या इतना नहीं है, बाहर है वो, ऐसा बोल सकते हैं। सो ठीक है, सो अब इसको अब लिमिट करते हैं, लेट्स गो टू यूज केसेस। ठीक है, तो यूज केसेस में कुछ चीजें तो कवर्ड हैं ही ऑलरेडी। अभी हमारे पास काइंड ऑफ यूजर्स जो हैं दोज आर आई मीन जनरल पब्लिक जो हो गई एक, और आपके मॉडरेटर हैं कुछ लोग, और भी कुछ है क्या, या यही दो लोग हैं? You mean identifying the actors? मतलब कितने काइंड ऑफ यूज केसेस हो सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? सो एक So तो what is मॉडरेटर that? होगा, राइट, दैट विल हैव सर्टेन प्रिविलेजेस कि वो कुछ वीडियोस को ब्लॉक कर सकता है, कुछ को फ्लैग कर देगा, इनएप्रोप्रिएट ब्लॉक कर देगा, काइंड ऑफ लाइक दैट। और एक हो जाएगा जनरल, मतलब एक व्यूअर्स हो जाएंगे जनरल पब्लिक जो व्यू कर सकते हैं, और एक हो जाएगा अपलोड भी, एक अपलोड कर सकते हैं। ये सारे यूज केसेस हैं। I have actually a little bit confusion here. So whatever you have written, right, that are not use cases. I was thinking that these are the use cases, and what you are trying to identify is kind of actors. So yeah, so these are actors basically. Yes, Rohit, that's the better term I think. So these are basically the various actors जिनके साइड से हम लोग को देखना पड़ेगा, जिनके पॉइंट ऑफ व्यू से सिस्टम को देखना पड़ेगा। But upload is not an actor. The general public is actor, and the use case is view, upload. Uploader basically. So that is basically the general public itself, right? Kunal, I think this is तो जनरल पब्लिक को मैं व्यूअर कह रहा हूँ, so राइट। थोड़ा सा टर्म का इशू। ये तो redundant है, I think उससे क्लियर है। above point states quite clear what you're writing again. हाँ, बट आपको सर सिस्टम्स, जैसे अब मैं यहाँ पे एक डालता हूँ, जैसे रोहित सर का मोनेटाइजेशन का पॉइंट था, राइट? सो आई कैन से यहाँ पे कि एक बिजनेस वाला एंगल है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो मोनेटाइजेशन का इंटरफेस आपको बिल्ड करना पड़ेगा, दैट वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ पर्सन हु जस्ट वांट्स टू अपलोड द वीडियो एंड समबडी वांट्स टू व्यू इट द वीडियो, राइट? सो इट्स अ डिफरेंट यूज केस ऑल टुगेदर फॉर अ डिफरेंट एक्टर। What you're saying कि हम इन above 14 points में से बस स्कोप आउट कर लें, what we're discussing here, what we'll do later, बस। नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ मैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि अगर मान लो कि आपने सपोज करो मोनेटाइजेशन का पॉइंट ऊपर तो मेंशन किया है, बट देन यू लीव इट इन द एक्टर, राइट? देन यू डोंट नो कि आप जो एक्चुअल फीचर्स बिल्ड करोगे उसमें एक मोनेटाइजेशन का भी एक कंपोनेंट हो सकता है। ठीक है, मतलब हो सकता है कि ओवरलैप है, डेफिनेटली ओवरलैप है दोनों पॉइंट्स में, आपके और मेरे पॉइंट्स में ओवरलैप है। चलो आगे बढ़ो, लेट्स सी। ठीक है, सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट स्टेप में स्कोपिंग आउट करते हैं। क्या क्या फोकस करना है अभी और क्या क्या छोड़ देना है? आई थिंक व्यू और अपलोड तो उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, मेन बात तो व्यू और अपलोड ही है। ठीक है, हाँ, Yeah, I think view, upload and streaming. स्ट्रीमिंग रखना है, छोड़ देना है? या स्ट्रीमिंग रख लेते क्योंकि पूछा जाता है। क्लिक करो। हाँ ठीक है, कवर कर। मोनेटाइजेशन छोड़ दें या रखना है? नॉइज आ रहा है, बहुत नॉइज है किसी साइड। मुझे तो कोई नॉइज नहीं आ रही। ये लॉट ऑफ डिस्टरबेंस सडनली यार। जिसको नॉइज नहीं आ रही है उसी का माइक होगा। अरे मुझे तो पुलिस से दोनों को आ रही है। बहुत नॉइज है भाई। चलो अब सही है। बाकी प्लीज म्यूट कर दो यार, म्यूट कर दो, और कोई स्पीकर पर मत सुनो यार ज्यादा, नॉर्मल से नॉर्मल। हाँ ठीक है, सो ये तीन फीचर रखते हैं। आई थिंक मोनेटाइजेशन छोड़ देते हैं, दैट्स स्लाइटली ट्रिकी हो जाएगा अभी। मेक सेंस, बिल्कुल सही 3 फीचर्स हैं। वी शुड गो विद दीस 3 ओनली, या फॉर नाउ।
और आपका वो सब तो रहेगा ही, लॉग इन लॉग आउट वाला। यार वो सब ओके, चलो बेसिक, बहुत बेसिक है, लीव इट। हाँ, ओके so let's just focus on 3 basic parts जो तुम लिखे हैं, they are very good, yeah. ओके ठीक है। तो अपना नेक्स्ट स्टेप जो है दैट्स कंपोनेंट डायग्राम, राइट। सो ओवरऑल कंपोनेंट्स आपके क्या क्या बनेंगे? कंपोनेंट बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। draw.io करके वेबसाइट है, वो पिक कर लो, वहां पे बना सकते हो, और यू कैन सेव इट इन द डॉक्यूमेंट्स गूगल डॉक्स। अरे यार इसमें भी तो आता है ना वो चार्ट्स, और इसका ऑप्शन तो होता है बार का। अरे पेंटिंग टाइप का रहेगा, One दिक्कत है question I have basically, before jumping to the component diagram, we should think about how much capacity we want from the system at least. It's like how many requests we are going to serve, how many users we are going to serve, how many videos per second we are allowing to upload, something like that. We have to decide, and then we can jump on the component diagram, right? I think that's correct. That could be covered in only in the clarification question itself कि कितना यूजर के लिए स्केल करना है। Yeah. Rohit sir, you are on mute. NFR की बात कर रही थी about that. हाँ right. Yeah. So how many users to target? So let's say कितना? 1 billion. No, we will start from I think 1000 user, then we will scale. नहीं मतलब एक स्केल का अभी जो सिस्टम डिजाइन कर रहे हो, तो मतलब पायलट थोड़ी बिल्ड करना है कोई। सिस्टम डिजाइन में तो एक ओवरऑल टारगेट लेके चलोगे ना। अब 1000 के लिए करोगे तो तुम वो काइंड ऑफ चैलेंजिंग स्टैक्स ही मिलोगे, राइट। तो नहीं तो ये रहता है ना कि कंपोनेंट कैसे पिक करते हैं, ये क्वेश्चन आई थिंक बिटवीन में आएगा ना, क्योंकि वी विल स्टार्ट विद 100,000 यूजर, देन वी विल स्केल फॉर बिलियन यूजर। सो योर एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर शुड बी एबल टू एक्सटेंड और शुड बी एबल टू हैंडल दैट स्केल। तो वो रहेंगे कि 1000 यूजर से स्टार्ट करो, अदरवाइज इनिशियली में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी तो डिफिकल्ट रहेगा। सो लेट मी पॉइंट आउट देयर इटसेल्फ, कोई भी सिस्टम 4 टाइम्स से ज़्यादा स्केल नहीं हो सकता। दैट्स द बेसिक फंडामेंटल ऑफ एनी सिस्टम डिज़ाइन। आपको जो भी वो मिलता है इन जनरल, वैसे भी योर सिस्टम डिज़ाइन शुड बी in accordance with the number of users that you want to support, or Right. your design should be able to support only 3 to 4 times of the actual scale that is there. उससे अगर ज़्यादा चाहिए तो सिस्टम डिज़ाइन चेंज मांगेगा, अदरवाइज इट विल बी एन ओवरहेड ऑन द करंट सिस्टम इटसेल्फ। Yeah, So- I think Rohit sir, so agree to your point. Basically, मतलब I think Gahoi is वो एक पायलट वाला अप्रोच फॉलो कर रहा है। हाँ नहीं वो इसीलिए आई जस्ट सिस्टम वांट डिजाइन टू, में तो you should have exact requirement कि आपको correct 1 billion के exactly, लिए स्केल करना है, राइट। हाँ, but I am supporting your point cannot do a pilot based MVP वाला अप्रोच नहीं होना चाहिए इसमें। करेक्ट, वो वही वाला पॉइंट मैं सपोर्ट करने के लिए इसी के लिए कह रहा था कि द रिक्वायरमेंट्स विल बी ऑन द हाई लेवल। वो फेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि भाई चलो ठीक है पहले 1000 के लिए कर लो, फिर 2000 के लिए, बट योर डिजाइन विल चेंज if you there are more users, 3 to 4 times, that's the overall general perception कि आप 3 to 4 times traffic support कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। आई थिंक गौरी का जो पॉइंट था वो इट्स अबाउट हॉरिजॉन्टली स्केलेबिलिटी, कि हम ऐसा ही सिस्टम बनाएं जिसमें हम जैसे कि री आर्किटेक्चरिंग का हम सोचे ही ना बाद में, जैसे कि उसको हम हॉरिजॉन्टल वो कर पाए, स्केल कर पाए। एक्चुअली मैं इंटरव्यू मेरा पॉइंट ये था कि जैसे इंटरव्यू एस्पेक्ट से देख रहे हैं ना, तो जनरली पीपल जस्ट स्टार्ट पुटिंग लोड बैलेंसर, स्टार्ट यूजिंग हॉरिजॉन्टल स्केल, बट उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि वाई दे आर पुटिंग दैट लोड बैलेंसर, वाई डूइंग द हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, व्हेन डू यू नीड हॉरिजॉन्टल स्केलेबल, नीड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, और इवन जब आपके नंबर ऑफ रिक्वेस्ट बढ़ रहे हैं तो आप कैसे स्केल करोगे, जब आपके डेटा इंक्रीज कर रहा है तो आप कैसे स्केल करोगे। दे ऑल हैव ए डिफरेंट स्ट्रेटजी। सो इस केस में हम क्या देखते हैं कि पहले क्या होता है कि लेट्स सपोज यू हैव लॉन्च सम एप्लीकेशन एंड नंबर ऑफ व्यूज आपके बढ़ेंगे, तो यू नीड टू स्केल अकॉर्डिंगली, देन आपका यूजर बेस बढ़ेगा। तो इसलिए मैंने ये पॉइंट किया था। So I think right Goi, but that point can be taken in this way कि पहले आपने कॉल आउट किया कि अगर मे बी इंटरव्यूअर सेज कि ठीक है पहले आप बिल्ड कर लो से 10,000 यूजर्स के लिए, राइट, एंड देन ही आस्क्ड यू एज अ काउंटर क्वेश्चन कि ओके नाउ यू हैव टू स्केल द सेम सिस्टम टू बिलियंस ऑफ यूजर्स, तो कैसे करोगे, राइट। देन यू ब्रिंग इन दीज पॉइंट्स कि आप वर्टिकली स्केल करोगे या हॉरिजॉन्टली स्केल करोगे, मतलब डिफरेंट वेज टू अप्रोच इट।
मतलब आप लोग बता सकते हैं कैसे करना है। Yeah, Kunal, I have one point. So normally ना तुम लोग को बात ठीक है कि let's consider this as a scalable design session, कि हम by default ये assume करें कि हमें scalable design करना है, rather कि specific use case जब आए कि भैया design only for 1000 users, वो अलग बात है। Let's keep these sessions just for scalable design. मान के चलो scale पे design करना है, ठीक है, okay. So let's to put a number, can I put 1 billion here? हाँ, उस हिसाब से नंबर so that because I think so we will have to get it very mathematical here and figure out कि 1 billion के लिए हम लोग को कितना QPS करना पड़ेगा, इसलिए I'm trying to put an exact number here. Exactly. तो हाँ, we can consider that approach also. ठीक है, लेकिन largely let's just think of कि scalability पे करना है, तो maybe we can focus on more on right topics rather than numbers here. नंबर बड़े होंगे या मान लो। हाँ, तो जैसे 1 बिलियन मैं पर डे कर दूं, पर आवर कर दूं, कुछ इस तरह से पर डे कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है, 1 बिलियन पर डे का आपका व्यू हो जाएगा, एंड अब राइट जो हो जाएगा दैट इज 1000 कर देते हैं, या कितना करना है? 1000 पर आवर कर दूं या? अच्छा, हाँ, ठीक है, तो फिर सारा पर डे या पर आवर ही रखो, सेम। वो मैथ कर लेंगे अजीत, ठीक है। ओके, सो मूविंग ऑन। तो ठीक है, धीरज वाला पॉइंट कवर हो गया। अब हम लोग दोबारा वापस आए। सर आवाज नहीं आ रही पंडित सर, यू आर म्यूट। मैं बी रियलिस्टिक व्हेन यू आर रियलिस्टिक इन व्यूज, लिटिल रियलिस्टिक इन राइट्स। कितना होना चाहिए? तुम सोचो क्यों की बात कर रहे हो, तो कुछ मतलब तो बड़ा नहीं, तो ये तो इट डिपेंड्स ऑन द सिस्टम ना, कि आपका हो सकता है कि रीड हैवी सिस्टम हो या राइट हैवी हो, ऐसा हो सकता है ना। चलो ठीक है, चलो 10,000 कर दिया पर आवर। ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? और एनएफआर पॉइंट्स गाइस, एनएफआर पॉइंट्स ऐड कर दो प्लीज। हाँ, यस। NFR points, a page where we are kind of loading all the videos, recommended videos. Maybe that can be kind of load within 1 second or 2 second. 2 second, that's 2-3 second. Maybe that we can take. The first page where user can see all the videos, basically the wall, you can say. अच्छा, 1 मिनट। हमने यहाँ पे धीरज रिकमेंडेशन को कवर नहीं किया था, स्कोप आउट कर दिया था। So we can add recommendation if you want, and we can think about it. Recommendation भी एक core feature है। Or maybe the person has subscribed to maybe say 10 or 12 channels, then based on that, all the videos for those from those channels should list within seconds or 2 seconds, something like that. तो अपलोड का तो लिखा है ना, मतलब 10,000 पर आवर है, सो विल फिगर आउट कि एक सेकंड में कितने वीडियोस अपलोड होंगे, राइट? No, I'm talking about the first when the website will load, right? The first page itself, where the user will see all the videos, like the first page. ठीक है, so first point first, I have added recommendation को scope out नहीं किया है अभी, recommendation is in our scope. And second, धीरज point is कि अगर हम लोग को जैसे पर यूजर 20 वीडियोस रिकमेंड करने हैं, so एक पेज के ऊपर 20 वीडियोस लोड होंगे, राइट? एंड हाउ विल यू जनरेट दैट, कि रिकमेंडेशन वाले में जानना है कि ये रिकमेंडेशन कैसे हम लोग जनरेट करेंगे एनएफआर पॉइंट ऑफ व्यू। That's what I'm saying, कि मतलब कि if a user has subscribed to maybe say 10 or 12 channels, so based on that we will recommend the videos from those channels, basically. You are right, but we are not considering recommendation use case at all, so we should ignore that in NFR. Okay. And one more thing, Kunal, I think the way we have targeted that, how many users targeted, okay? So the way we have calculated is the wrong order. Actually, interview also looking for that, basically how you're calculating. So first you calculate per hour, then you calculate for per day. हाँ नहीं, वो यार वो एक टारगेट लिखा है भाई, वो दैट इज जस्ट अ टारगेट। योर पॉइंट इज ओके। हम लोग नंबर्स पे बहुत ज्यादा अभी नहीं खेलते हैं, मेन डिजाइन पे आ जाते हैं, है ना? और बस अज्यूमिंग से बड़ा स्केल है, बस इतना समझ के। ठीक है, और कोई एनएफआर पॉइंट? हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा कि हमारे यूजर्स जो हैं दे विल बी हैविंग डिफरेंट बैंडविड्थ्स ऑफ इंटरनेट,
तो उन लोगों को यूजर की स्पेस मतलब अगर बैंडविड्थ कम भी है, नेटवर्क में स्लो भी है या तेज भी है, आई शुड गेट द ऑप्टिमम वीडियो एज पर मी, ज्यादा बफरिंग नहीं होनी चाहिए। तो सर मतलब आप कह रहे हो कि देन हम लोग बैंडविड्थ वाला पॉइंट कवर कर रहे हैं, राइट? व्हेन यू आर सेइंग हमने स्कोप में नहीं लिया था उसको, ये लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, आई एडेड इट। तो This is NFR. सो NFR में आई थिंक यू मतलब दैट वीडियो होना चाहिए, आई थिंक वर्ड में सारी जगह अवेलेबल होना चाहिए इन लो लेटेंसी एज वेल, और फ्रॉम द मोबाइल नेटवर्क से भी कवर होना चाहिए। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। सो एटलीस्ट ये एनएफआर में लिख लो इसको, बैंडविड्थ और लो लेटेंसी दोनों लिख लो। And that video is available from all around the world. Yeah, one more point. The system should be kind of if we are uploading a video, that video should never be lost. Something like that. Data loss should not be there. Consistency means at least the data should be like kind of available always. It should never be lost. And one more thing. सभी अलग-अलग चीजें हैं. Consistency अलग चीज है. Data loss is a different thing. So no, you are basically saying just data mean loss if user has uploaded a video, so at least that video should never get lost or destroyed or deleted, something like that. Maybe until unless user has deleted that video by default. So basically you are saying robustness, right? Robustness of system. Robustness. Yeah. That better term is that. Yeah. And one more thing, once the user has uploaded the video, it should be visible to all the other users and near real time. Okay. So near real time. So basically this is availability, right? Yeah, availability. Availability of close to 100%. बट अवेलेबिलिटी में भी कभी कभी होता है कि यूट्यूब का कोई वीडियो इंडिया में विजिबल नहीं है, नॉट अवेलेबल एट योर लोकेशन आता है, ये फीचर भी होता है। वो अलग चीज होगी ब्रिजेश, दैट इज बाय फीचर हो गया, राइट? प्राइवेसी। बट उस केस में यू आर सेइंग कि सपोज करो वो फीचर जो है सिर्फ यूके में विजिबल है, तो गोइज पॉइंट इज कि अगर यूके में विजिबल है तो जैसे ही किसी ने पब्लिश किया वो इमेज एज क्विकली एज यू कैन मेक इट अवेलेबल टू एवरीबॉडी। हाँ नहीं, मैं दूसरे फीचर की बात कर रहा था कि वीडियो क्या स्पेसिफिक टू लोकेशन होता है क्या? कभी कभी आता है यूट्यूब में कि इट्स नॉट अवेलेबल इन योर लोकेशन रहता है। दैट्स व्हाई आई थिंक आल्सो मेंशन दैट the video should be available from all around the world. Okay. I think we have spent enough time. इतनी देर अगर प्रॉब्लम डिस्कस करोगे तो सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा कभी भी। Correct. I think this much requirement is very good to. Yeah. Let's go ahead. Block diagrams पे आ जाना चाहिए। Block diagrams, right? क्या कह रहे थे आप? हाँ। I'm saying let's freeze the requirements. This is good enough. अब बढ़ते हैं आगे। Okay. So block diagrams में क्या क्या कह रहे हो आप लोग? क्या क्या components होने चाहिए? So my the view is that just if a user just has to view the videos, he doesn't really have to care about who uploads or what gets uploaded. He's just able to log in and view. That's all. Just the two things. Then from my point of view, there will be one gateway followed by an you can share this document ना, मैं इसी में लिख देता हूँ। आप ये शेयर्ड है ऑलरेडी आई थिंक। अच्छा नहीं, ये वाला नया डॉक्यूमेंट है। ये इसका शेयर ऑन करना पड़ेगा। किसी का टच स्क्रीन लैपटॉप हो तो आई थिंक पेंट वगैरह इजीली यूज हो जाएगा। टच स्क्रीन लैपटॉप उसकी भी जरूरत नहीं है, मतलब इट कैन बी डन। मेरा तो टच स्क्रीन है लेकिन करेंगे कैसे? बनाएंगे गोला। पेंट पे लाइक मतलब बेसिक रेक्टेंगुलर डब्बेस बना दो अगर,
तो भी चलेगा। एक सेकंड, पहले तो मेरे को स्काइप पे लॉगिन करना पड़ेगा। रुको, लेट मी शेयर स्क्रीन। हाँ, गॉट इट। ठीक है, तो मीनवाइल बाकी लोग, गेटवे हो गया और एक तो रीड का हो गया, एक राइट का भी होगा। राइट के लिए एक डिफरेंट कंपोनेंट होगा, ठीक है। और एक्चुअली रीड के लिए मतलब बहुत ज्यादा रीड कॉल जाएंगे, सीडीएन वगैरह चाहिए होगा। राइट, तो इसमें सीडीएन चाहिए होगा। सीडीएन इज गुड पॉइंट। Definitely good point, and I think we are already taken call, right? Read और write को separate रखेंगे, right? हाँ, सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे। हाँ, ठीक है। ठीक है। और स्ट्रीमिंग के लिए क्या हो गया? यस गाइस, अब जल्दी जल्दी पॉइंट देते हैं, थोड़ा फास्ट मूव करते हैं। शेयरिंग स्टॉप हो गई। Kunal, you are not seeing document. Present करो document. अच्छा, You can open the document now. I drew something and we can discuss on that. Okay, please हाँ, open. वो लिंक ही खोलो आप लोग, बेटर रहेगा। दिस इज द लिंक। This should be in our recorded session, no? तो recording में दिखना चाहिए वो presented. अच्छा, आ रहा है क्या? हाँ, लोड हो रहा है। हाँ, ठीक है। सो बेसिकली ये पॉइंट ये ड्रॉ किया है रोहित सर ने। Rohit explains. You can explain now. Yeah. Rohit available? म्यूट पे। Just 1 second, just 1 second. You can keep speaking, Rohit. लगेगा तुम connected हो। अच्छा, सॉरी। हाँ, नहीं, मैं उसमें उसको एरो ड्रॉ कर रहा था उसमें, इसलिए अच्छा। that's why. तो the idea is कि भाई मेरे हिसाब से there is a request that comes to a gateway. उस गेटवे से इंटरसेप्टर पे चले जाएगा कि ऑथेंटिकेट द रिक्वेस्ट। फिर हमारा CDN होगा जो अल्टीमेटली विल बी स्ट्रीमिंग द कंटेंट टू द गेटवे, एंड फ्रॉम गेटवे इट विल गो बैक टू द यूजर। सर अगर लाइक गेटवे के थ्रू थोड़ी ना करना है स्ट्रीमिंग, लाइक वी कैन डायरेक्टली पॉइंट टू हाँ, आई मीन, हाँ, वो CDN से डायरेक्टली वहां आगे चला जाएगा। वो यूजर के आगे जाना है तो यूजर रह गया गेटवे के आगे, तो CDN से डायरेक्टली यूजर पे कंटेंट चला जाएगा। So I have a one नहीं, सो वन question. सेकेंड, ये CDN जो है आपका वो राइट से लिंक्ड होगा, बिकॉज सो व्हेनेवर यू आर अपलोडिंग अ वीडियो, राइट? ये बाद में होगा, अभी हम लोग गो स्टेप बाय स्टेप। अभी सिर्फ और सिर्फ रीड की बात हो रही है, दैट्स ऑल। ओके, ठीक है, ओके। तो ये आपने रीड का कंपोनेंट बनाया सर? जस्ट रीड कि यूजर इज ब्राउजिंग, तो वो उसका रिक्वेस्ट गेटवे पे आया, ऑथराइज हुआ, CDN से डायरेक्टली कंटेंट स्ट्रीम होने लगेगा। ठीक है। So before I have one question, मतलब कि क्लाइंट जो सर्वर का जो कम्युनिकेशन रहेगा दैट इज पुश वर्सेस और पुल रहेगा, क्योंकि अगर गेटवे लगाएंगे तो फिर अगर परसिस्टेंट कनेक्शन कहीं मेंटेन कर रहे हैं तो फिर आई थिंक गेटवे कैसे हैंडल करेगा उसको? So Rohit sir, exactly what do you mean by gateway here?
So like you have to expose APIs to the client customer, Basically right? आप youtube.com डालते हो, so that हाँ. request goes to a gateway. That's what I am talking about. Yeah. So you have to basically have at least one API to read this. Then you can redirect that to another. Let's say you can say this URL is 302, and it goes to the CDN. So once user has the CDN address, वो directly उसके बाद communicate कर सकता है based on some auth token and all. Yes. Next time gateway picture में नहीं आएगा. Yeah. Okay. ठीक है. तो I think read में और कुछ करना है? So read is always pull in that case. अच्छा, so his point. Read. तो ये push and pull कैसे आ रहा है वही पिक्चर में? I am not clear here. So let's say अगर स्ट्रीमिंग कहीं ओपन कर रहा हो, वीडियो देख रहा हो, so तुम जावास्क्रिप्ट पे कुछ लिखोगे क्या कि इतना बफर डेटा आ गया है, नाउ यू नीड टू रीड डेटा फ्रॉम दिस सर्वर, राइट? Or you will open some connection like kind of web socket with some server, and that will keep pushing the data in your socket. So which mechanism we are going to pick? Based on that we can see कि हमें authentication लेना, मतलब कि गेटवे के थ्रू जाना है कि नहीं, but gateway के through तो we can I still did go not ना. understand. मुझे अभी समझ में नहीं आया. What was the point? I think GUI is going slightly more low level पे अभी, but gateway can still be there ना GUI in all cases. So gateway basically is taking care कि आपको किस CDN पे भेजना है. So basically अगर मैं इंडिया से कॉल कर रहा हूँ तो मुझे इंडिया वाला CDN पे भेज देगा, and somebody is calling from UK तो उसको UK वाला CDN पे भेज देगा. That is what gateway is doing right now. Okay, go ahead. ठीक है, तो सर फिर राइट पे चलते हैं. Yeah, sure. Yeah, sure. ओके, तो ये आपका राइट वाला नीचे आ जाएगा. सो राइट वाले केस में देन वी नीड टू मेंटेन अ कनेक्शन अगेन विद द गेटवे, एंड देन इट विल. इसमें आपका रीड वाले में कुछ वो भी नहीं आया. ठीक है, वी कैन इंट्रोड्यूस राइट हियर. तो राइट का कंपोनेंट विल कम थ्रू गेटवे एंड देन इट विल टॉक टू सीडीएन, राइट? यस. सो अभी वो उसको शायद नाम दे दो CDN को, डिस्ट्रीब्यूशन CDN A उस तरीके से, एंड देन द राइट विल बी एबल टू राइट टू दैट पर्टिकुलर CDN जहां से डिस्ट्रीब्यूशन होगा. And actually videos का main storage CDN नहीं रहेगा. It should be some S3 storage or something, right? S3 CDN only, right? नहीं, CDN थोड़ा okay. I mean एक प्राइमरी स्टोरेज कुछ और भी रहेगा, राइट? वी आर मेंटेनिंग कॉपी और डिफरेंट सीडी नेटवर्क्स, एंड एक प्राइमरी स्टोरेज और नहीं रखेंगे. आई थिंक या दैट्स करेक्ट. प्राइमरी स्टोरेज होना चाहिए. Storage has to be on Okay, file system. let me put it this way again. This is only read सिर्फ CDN से होगा. आप डायरेक्टली प्राइमरी सोर्स पे जाके रीड नहीं करोगे कभी भी. नहीं, राइट के लिए मैंने कहा. हाँ, राइट के लिए तो बनाएंगे. ओके, वो राइट एक्चुअली राइट नहीं रोहित सर, इवन इन केस ऑफ रीड आल्सो, अगर फॉल बैक होता है, राइट, the CDN does not have the data, then you might have to go to the primary source itself and then put the data in the CDN and then serve it. I think, or maybe you can go to a different CDN, right? So that again that will just a cascading, right, Brajesh? Ultimately you have to go to primary source ना, अगर data available नहीं है तो CDNs पे. Yeah, ultimately. True. ओके, सो रोहित सर अभी ड्रॉ करो फिर वो कंपोनेंट कैसे ड्रॉ कर रहे थे. सो राइट के लिए बेसिकली एक प्राइमरी बना दो. वी कैन डिसाइड उसका स्टैक क्या होगा. हाँ, राइट के कंपोनेंट बनाओ. रोहित स्टार्ट. भाई डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करते रहो, गायब हो जाता बीच में. अरे आप ड्रॉ कर लो ना. रोहित सर ने शेयर किया ना, इसलिए ड्रॉप हो गया. Draw.io यूज कर लो ना. Draw.io.amazon.com. हाँ, सही, बहुत बढ़िया.
ये अब सही है इतना? Actor, gateway, interceptor. Actor is user basically here. ऊपर CDN के 2 ब्लॉक्स बन गए ना? हाँ। इंटरसेप्टर क्या रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे? ऑथेंटिकेशन। अच्छा, क्या अभी ड्रॉप कर सकते हैं क्या इसको? ठीक है, मतलब it doesn't really making a lot of difference. एंड रोहित सर वीडियोस का एज जैसे जहाँ भी स्टोर होगी फाइल पाथ, उसका हम पाथ वगैरह कहाँ स्टोर करेंगे? अभी सिर्फ हाई लेवल पे स्टोर रखा है। अब स्टोर से वो कैसे इसके अंदर यू कैन हैव अ क्लाउड एसोसिएटेड विद दिस जो स्टोरेज के साथ लिंक्ड होगा। सो दिस इज अ क्लाउड स्टोरेज और कंटेंट स्टोरेज, बेसिकली मीडिया स्टोरेज। हाँ, बेसिकली इज वेरी गोइंग, मतलब एट अ लो लेवल की आप यूआरएल कैसे जनरेट करोगे और यूआरएल कहाँ पे स्टोर करोगे। नहीं, आई एम नॉट गोइंग देयर। लेट्स से स्टोरेज इज जस्ट अ फाइल, इफ यू वीडियो इज जस्ट अ फाइल, वी आर स्टोरिंग इट समवेयर। अब वो फाइल जो स्टोर हुई है, टू एक्सेस इट वी नीड टू स्टोर द एड्रेस समवेयर कि बहुत फास्ट एक्सेस हो सके। उसके लिए कोई अलग से सिस्टम कैशिंग या ऐसा कुछ चाहिए होगा, राइट? वो सीडीएन उसी के लिए है ना, रीडिंग के। अभी हम रीडिंग की बात कर रहे हैं सर। नहीं, सीडीएन में नहीं मिला, कुछ भी सीडीएन में नहीं मिला। देन यू हैव टू गो टू प्राइमरी स्टोरेज, एंड टू गो प्राइमरी स्टोरेज बहुत बड़ा हो सकता है, तो वहाँ सर्चिंग फास्ट करने के लिए फिर हमें एक्स्ट्रा लेयर कैशिंग उसके एड्रेसेस वीडियोस के कहीं रखने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है? सो बेसिकली अगर हम लोग नंबर्स पे जाएं कि हम लोग को 1 बिलियन पर क्या था, 1 बिलियन हमें सपोर्ट करना है पर डे। सो मतलब डू वी नीड वन मोर स्टोर इन बिटवीन, जो अगर आप डायरेक्टली रीड करोगे प्राइमरी स्टोर से तो मे बी विल नॉट बी एबल टू डू इन रियल टाइम। या दैट्स माय क्वेश्चन। सो आई थिंक कोई कैशिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा। Again, this is not a search system. So when you're querying this database or storage, you're always passing a key, like the key where it is indexed. और एक और चीज, वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि CDNs आर मेंट फॉर वेरी हैवी रीड्स। वही कैशिंग अपने आप में है, दैट्स व्हाट CDN इज। हाँ, that is agreed, Rohit sir. But the point, Banwal point is कि suppose you didn't get the video in the CDN, then you have a fallback, right, on the primary store. Now That again, will also... primary store can be very latent. So इसलिए caching की जरूरत है. That's the basic point. So first thing is कि we can decide कि उस केस में भी caching की जरूरत है कि नहीं. And second is कि अगर है तो फिर which cache will be used. वो ठीक कह रहा है ना रोहित ने एक बार कहा क्लियरली कि कैश मींस CDN, तो फिर दूसरा कैश लगे क्या करो, वो भी डाउन हो जाएगा। सो आइडली आई थिंक कैशिंग का जो है कि एवरी लेयर पे कैशिंग होनी चाहिए। सो ये CDN बेसिकली फॉर एज नेटवर्क, बट मे बी सोर्स यूके का हो तो फिर सर्वर के पास जाने के लिए अलग से कैश लगाने पड़े, डेटाबेस से पहले कैश। एवरी लेयर शुड हैव कैश। दैट इज अ लोकेलिटी ऑफ कोहेरेंस कॉन्सेप्ट पीपल जनरली यूज। नहीं, बट CDN अगर है तो कैशिंग की जरूरत इसलिए नहीं है कि जब आपको पहली बार आप अपने CDN पे नहीं मिलेगा तो आई थिंक प्राइमरी स्टोर से सबसे पहले CDN पे कॉपी होता है ना। No, okay. Let me put in this way. Let us suppose you have thousands of CDN. Okay. Now you have a fallback storage. One request is coming to the CDN. Now that request coming to your service. Okay. Now that request fulfill. If you haven't put that caching at that backend, the service which is behind that CDN, then the another 99 requests will come from the CDN will going to miss, right? नहीं सर, गौई मतलब at the end of it, right, you only need one call to the primary store ना, उसके बाद तो वो CDN में अवेलेबल हो जाएगा, right? And since जो डायग्राम हमने बनाया है, so every CDN is talking to other CDN, तो कहीं पे डेटा नहीं मिला तो it will get through from other CDN, उसको प्राइमरी स्टोर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। only when we are falling back to primary store, जब हमें किसी CDN पे डेटा नहीं मिलता है तो हमें basically ये estimate... Okay, let me explain the case. Okay, let us suppose मतलब कि अमिताभ बच्चन ने कोई वीडियो अपलोड किया, राइट? और उनके जो फॉलोअर्स हैं थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स में, मतलब कि अक्रॉस द वर्ल्ड है, तो सारे वर्ड्स के जो एज नेटवर्क है उसमें रिक्वेस्ट हिट आएगी और सब में मिस होगा। अभी लेट अस सपोज कि तुम्हारा
एक सीडीएन पे मिस हुआ, ये तुम्हारा की प्राइमरी सर्वर पे आया, ठीक है। नाउ अगर तुमने यहाँ पे कैश नहीं लगाया तो जो वर्ड के डिफरेंट सीडीएन्स होंगे वो भी आएंगे तुम्हारे बैकएंड पे, और वो उनको भी मिस मिलेगा। तो इसलिए तो तुम आई थिंक एवरी लेयर मस्ट हैव कैश। ओके, सो लेट मी पुट इट दिस वे इन सिंपलर टर्म्स। मैं सीडीएन की जगह वहां पे उसका टर्म कर देता हूँ कैश। ठीक है, सीडीएन की जगह आई विल यूज द टर्म कैशिंग। दैट वुड बी बेटर। ठीक है, तो दैट विल सिंप्लीफाई। And also, Gavi sir, one more thing, like in case of in such scenarios, you not follow the like pull base. Like you basically push to your side of people, like followers, and then they call it. That Yes, is I a think different mechanism. That's why I asked you are working on push mechanism or pull mechanism. yeah, I think ये जो CDN पे डेटा डालना है, that should be a push mechanism. Because we know कि अगर अमिताभ बच्चन वीडियो अपलोड कर रहा है तो मोस्टली पीपल फ्रॉम इंडिया विल बी वाचिंग इट, सो उसको इंडिया वाले CDN पे पुश कर देना, दैट काइंड ऑफ थिंग. Rohit sir, I'll suggest that CDN we should not kind of exchange terms नीरज, CDN आवाज with नहीं आ रही caching तुम्हारी, because बहुत लो है. okay. Yes. Hello. Can you hear me? Yeah. So I was saying, I think we should not exchange CDN with the caching, because CDN is kind of a paid service, and CDN network is kind of distributed across the geographical areas, and it's kind of very huge infrastructure. So people kind of take subscription, use basically Akamai's CDN or something like that. They don't own the CDN for themselves. It's like Facebook has their own CDN, but still they were using their Akamai previously. So caching, people can have their caching environment, but CDN is something like that is kind of bought, that is kind of purchased. So there's a cost associated with the CDN as well. So we may need to think about that. And I mean, Neeraj sir, बोलिए. Netflix uses CDN. Like they Yeah. build a caching server. Call it like something. Okay. For the name, it's a server for them. You can build this, Okay. and Yeah, I think हम लोग टेक्नोलॉजी में जाके कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं. So CDN is basically a server which can serve static content. That's all. So and sometimes CDN is also not used for caching, because sometimes also it used for just for in streaming, because storing data on CDN also have a huge charges. So sometimes, so basically CDNs are privately owned, and each CDN networks are attached with each other with the high you can say high speed fiber networks. They are not shared across the internet public networks, so it's very high speed. So generally we don't, sometimes what happens, as much as video you will store on CDN, it will increase the cost of the company, basically cost of the operation basically. So that's one more point on that. I think हम लोग थोड़ा सा शायद डेविएट कर गए हैं, मतलब ठीक है, कंसीडरिंग एवरीबॉडीज पॉइंट. आई थिंक लेट्स गो बाय द रोहित सर पॉइंट कि उसको हम लोग कैशिंग कह लेते हैं एंड मूव ऑन यहाँ पे. ठीक है, आई गेस उसको जो बोलना है बोल दो. लेट्स बी देयर. हाँ, नहीं तो आई थिंक वी विल बी स्पेंडिंग टू मच टाइम हियर. सो आई थिंक रोहित सर वी आर ऑन राइट. वो डायग्राम रेडी है क्या आपका, राइट फ्लो का? नहीं, मैंने अभी डिजाइन थोड़ी किया है, मैं तो अब डिस्कस होगा ना राइट का. ठीक है, राइट का अप्रोच डिस्कस करते हैं. So let's say CDN is cache now. ओके, राइट पे आओ भाई, राइट पे चलो. राइट पे आ जाओ भाई. रोहित तुम बनाओ डायग्राम, बढ़िया डायग्राम बना रहे हो तुम. इतने दिनों से डायग्राम बनाते बनाते डिजाइन के इतनी अच्छी हैबिट हो गई है. तो आप शेयर किए हुए हैं क्या? नहीं, आई जस्ट स्टॉप शेयरिंग, लेट मी शेयर अगेन. अब दिख रही है स्क्रीन? यस. हाँ सर. ओके, बताओ भाई क्या क्या चाहिए.
व्हाट इज द फर्स्ट लेयर? गेटवे। हाँ गेटवे जाएगा, इंटरसेप्टर, वो तो फ्लो सेम ही रहेगा हमेशा ही, दीज टू हाँ। थिंग्स विल ऑलवेज बी देयर। फिर वो सर्विस भी रहेगा ही। सर्विस रहेगा। नाउ व्हाट इज दिस सर्विस? सो दिस इज बेसिकली अपना बैकएंड बिजनेस लॉजिक का सर्विस है। अपलोडर सर्विस, कुछ भी अपलोडर कह लो। बिल्कुल। ठीक है, देन व्हाट डू वी हैव? Now this will basically will talk to the primary data store and CDN. डायरेक्टली? मतलब what do you suggest? मेरे हिसाब से तो वी हैव टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ स्टफ, तो मेरे हिसाब से एक एनकोडर आएगा बीच में, या फिर फैन कोड मतलब फैन आउट, और इंटरसेप्टर के अलावा देयर वुड बी अ स्ट्रीमिंग दैट विल हैपन। अपलोड के लिए अलग स्ट्रीम चाहिए होती है। एनकोडर मतलब बेसिकली क्या यहाँ पे एनकोडिंग एंड कंप्रेसिंग कर रहे हो क्या? हाँ, वो सब भी आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्ट्रीम आएगी दैट विल बी रिटन डायरेक्टली इनटू योर स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज जो भी है तुम्हारा, ऑब्जेक्ट स्टोर बेसिकली। हाँ मतलब Object एक store आपने आएगा। रॉ फॉर्मेट स्टोर कर लिया एंड देन कंप्रेस फॉर्मेट यू आर स्टोरिंग। हाँ, तो पहले ऑब्जेक्ट स्टोर में जाएगा सबसे पहले। आई एम नॉट मतलब फ्लो डायग्राम में बस अभी कनेक्शंस है बेसिकली। तो ये ऑब्जेक्ट स्टोर में द यूजर विल डायरेक्टली डू दैट। ठीक है, सो आपका ऑब्जेक्ट स्टोर हो गया। आई थिंक एट दिस पॉइंट वी शुड आल्सो थिंक अबाउट जो डेटा लॉस का जो हमने पॉइंट रखा था, राइट, दैट डिफरेंट बैंडविड्थ पे डिफरेंट चलना चाहिए। सो वी हैव टू क्रिएट डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस एट दिस पॉइंट इटसेल्फ, राइट? एंड अपलोड रिज्यूम करने की फैसिलिटी हम दे सकते हैं अगर ब्रेक कर गया। उस तो बाद में आते हैं, बेसिक बहुत ज्यादा है अभी तो। बनवा लो कॉन्ट, हाँ वो ओवरवेलम हो जाएंगे, फीचर बहुत ज्यादा हो जाएंगे। सो वीडियो ऑब्जेक्ट स्टोर में डायरेक्ट हम रख रहे हैं क्या? Normally that's typically what we do. We create a stream that uploads. जैसे फाइल अपलोड करते हो तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली उनके ऑब्जेक्ट स्ट्रीम पे जाती है, राइट? यस। तो उसी तरीके से it is going direct to object store. Then there is an encoding service which will read from there. So will we store the metadata of the video as well, like the name of the video Correct. file? So सर्विस के साथ हम यहाँ पे एक प्राइमरी डेटा स्टोर लगा सकते हैं। तो आपका ऑब्जेक्ट स्टोर क्या है? I was Object thinking store is same as primary data store. नहीं, ऑब्जेक्ट स्टोर इज जस्ट द कंटेंट स्टोर। S3 मानो कुछ भी। Content of the video file itself, and the metadata here we are going to store in the database. अच्छा, okay, got it. Basically file store है basically, right? Object store is like file store. Correct. So object store is basically any binary storage. जहाँ पे तुम टेक्स्ट, कंटेंट, इमेजेस कुछ भी डाल सकते हो। Got it. Blob. Encoding metadata. ठीक है, तो इसमें आपने वो भी बना दिया क्या? So let's decide कि कितने बैंडविड्थ सपोर्ट करने हैं। Usually YouTube supports 3 and 4, right? 4 and 5 kind of. So different kind का आपको मतलब बनाना पड़ेगा, and maybe we want different store उसके लिए, सभी के लिए, right? वो तो आएगा, ये अभी डायरेक्टली ये फर्स्ट वाला है। So for me it should be based on a workflow. Okay. क्योंकि हर वीडियो के साथ हमको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। तो वर्कफ्लो में दिस आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। तो बेसिकली मैं कहूँगा कि यहाँ से भाई इसको एनकोडिंग सर्विस पे भेजो, देन आई विल हैव व्हाट एल्स कैन वी हैव? हाँ रोहित, हाँ, तो एनकोडिंग से पहले हम लोगों ने बात की थी ना कि डिफरेंट बैंडविड्थ मतलब डिफरेंट यूजर्स के लिए वो अडेप्ट कर पाए, राइट? करेक्ट। तो एनकोडिंग सर्विस में मेरा पॉइंट वही था। बाय एनकोडिंग सर्विस आई मेंट दैट ओनली। तो उसे एक साथ लिख दो, या तो सेगमेंटेशन एंड एनकोडिंग लिख दो, या सेगमेंटेशन अलग बना दो। अच्छा, तो एनकोडिंग के बाद सेगमेंटेशन कर दे? सेगमेंटेशन तो पहले ही हो सकता है। अच्छा, एनकोडिंग से समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। एनकोडिंग अच्छा, एनकोडिंग ऑफ एनी वीडियो। तो वीडियो एनकोडिंग का सिंपल सा फंडा ये होता है कि व्हेनेवर यू अपलोड अ वीडियो,
एनकोडिंग का मतलब कि उसकी पिक्सल डेंसिटी क्या होगी, इज द वीडियो कंटेंट कंप्लीटेड, सो ऑल दैट स्टफ कंप्राइजेस ऑफ एनकोडिंग. मान लो उसके सबटाइटल्स जनरेट करने या कुछ भी, एनीथिंग, सो एनी प्रोसेसिंग दैट हैपेंस ऑन अ वीडियो इज एन एनकोडिंग सर्विस. Got it. Now we can span out this encoding service into multiple sub modules जहाँ पे segmentation हो रहा है, जहाँ पे video breakdown हो रहा है. In fact, अगर उसके वो करने snapshots generate करने वीडियो के, so that's all part of it. Okay. So I think हमारे मतलब बहुत सारे फीचर्स नहीं कवर कर रहे हैं जो आपने मेंशन किए. तो हमारे केस में encoding is वो video bandwidth only, right? So रोहित सर, ये वर्कफ्लो मतलब क्यों यूज किया यहाँ पे? नॉर्मली वर्कफ्लो हम लोग वहाँ यूज करने की कोशिश ज्यादा करते हैं जहाँ पे हम लोगों का इट्स लाइक लॉन्ग रनिंग प्रोसेसेस हैं, क्योंकि वीडियो स्ट्रीम तुम्हारा तुरंत नहीं हो जाएगा. करेक्ट. करेक्ट. सो अगर इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम. नहीं, सो इसके लिए अगर हम फैन आउट करके मल्टीपल वर्कर लॉन्च करें, जैसे कि ऑब्जेक्ट स्टोर में कोई भी फाइल अपलोड हुई, देन इट विल एसएनएस टॉपिक लगा दिया और डिफरेंट इनकोडर दे आर लिसनिंग टू दैट टॉपिक एंड दे स्टार्ट डूइंग दिस जॉब. अगर वर्कफ्लो में अगर कोई फेल होता है तो सो हाउ आफ्टर फेलिंग द पीपल विल मैनुअली रीरन समथिंग लाइक दिस, राइट? नहीं, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. वर्कफ्लो से मेरा सिंपल सा फंडा ये है कि देयर इज समबडी हु इज ओन्स द ओनरशिप ऑफ द कंप्लीट फ्लो. So basically kind of visibility kind of a thing. Orchestrator है एक मेरे पास जो ये processes invoke कर रहा है. So invocation SNS के through हो, चाहे REST endpoint के through हो, चाहे SQS के through हो, चाहे Kafka के through हो, it doesn't really matter. The point is कि एक flow है that's any video has to go through. कि भाई उसका पहले segmentation होगा, फिर encoding होगी, फिर breakdown होगा, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर नोटिफिकेशन होगा, स्टेटस अपडेट्स होंगे. सो दैट्स वन फ्लो व्हिच एवरी प्रोसेस हैज टू फॉलो. तो अगर हम इनको एक स्ट्रीमलाइन उसमें रखेंगे, देन देयर आर मोर पॉइंट्स ऑफ फेलियर्स एंड देयर विल बी वेरी लेस विजिबिलिटी. अभी क्या है, हमारे वर्क फ्लो में अगर कोई भी स्टेप कहीं पे फेल होता है, देन वी कैन ऑलवेज हैव मैकेनिज्म्स टू भाई अगर से वही स्टेप रीट्राई करना है. और इनफैक्ट इवन फ्रॉम दी विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम टेक्निकल टीम और बिजनेस टीम की भाई मेरे को देखना है कि भाई कितने वीडियोस अभी किस स्टेज में है, कितने अपलोड हो रहे हैं, डाउनलोड हो रहे हैं, किस किस स्टेज में है, उसमें है. बिसाइड्स एक सिंगल यूनिट ऑफ वर्कफ्लो होने का एडवांटेज ये है, यू कैन ऑलवेज स्केल इट. मतलब इसको हम टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं, डिजाइन टर्म्स में कहते हैं स्विम लेन्स. आपकी कोई भी डिजाइन ऐसे स्विम लेन्स में होनी चाहिए विच कैन बी पैरेलली रेप्लिकेटेड एंड हॉरिजॉन्टली स्केल्ड. इसलिए वर्कफ्लो वाली बात है. वरना क्या होगा, अभी आपके में हो सकता है क्योंकि एवरी प्रोसेस हैज टू गो थ्रू इट, तो कुछ मेमोरी इंटेंसिव होंगे, कुछ लेस मेमोरी इंटेंसिव होंगे, बट द नंबर ऑफ स्टेप्स आर गोइंग टू. तो आप इंडिविजुअली सर्विसेज को स्केल करोगे तो दैट कैन बी डिजाइन कि भाई मेरा अगर एनकोडिंग सर्विस ज़्यादा मेमोरी सीपीयू लेता है, देन आई विल नीड अ बिगर होस्ट फॉर दैट. अगर मेरा कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन लेस मेमोरी लेता है, आई कैन हैव अ स्मॉलर स्टैक, बट बेस्ड ऑन दैट I can replicate it as and when required जब भी मेरा flow बढ़ेगा. So I think ठीक है. So okay, हाँ गोविंद बोल. Okay. But ये workflow is just orchestrated, just control कर रहा है, right? So ultimately computation तो कहीं पे और किसी different machine पे ही जाएगा. So basically I think just to wrap it one line, Rohit sir by workflow means कि there are many steps, right? Which he has just सेड कि ये वर्कफ्लो है पूरा. बहुत सारा बिजनेस लॉजिक जो बताया, राइट? उसके लिए एक टर्म यूज करें वर्कफ्लो. मुझे लगता है रोहित सर यहाँ पे एक काम हमें करना चाहिए. सो मोस्टली आई थिंक जो फ्लो है वो सिंक फ्लो लग रहा है. सो मतलब सिंक फ्लो वोंट बी पॉसिबल, राइट? सो वी शुड पुट सम काफका और समथिंग इन बिटवीन जहाँ पे हमने राइट कर दिया एंड देन काफका टेक्स केयर ऑफ डूइंग ऑल दो जॉब्स, राइट? जैसे कि डिफरेंट बैंडविड्थ के वीडियोस बनाना या फिर एनकोडिंग करना and many other things that you said, right? So if you just view the arrow directions, तो उसमें कोई भी वापस नहीं आ रहा है. So object store से workflow ने read किया, there is some indicator there. तो चाहे वो notification चाहे किसी भी फॉर्म में आए, it can be a scheduled job, it can be a notify event based trigger. तो उस तरीके से जैसे ये workflow से video encoding में गया, I have not specified कि ये क्या है. This can always be a queue. Okay.
तो मैंने आई हैवंट टॉक्ड अबाउट कि कम्युनिकेशन चैनल हमारा क्या है अभी. इट कैन बी एनीथिंग. तो अगर मेरा ये ऑब्जेक्ट स्टोर में राइट हो रहा है तो ऑब्वियसली दिस इटसेल्फ इज वर्किंग एज अ कंट्रोलर फॉर मी. थ्रॉटलिंग यहीं पे हो जाएगी, मैं इजीली रीड करूंगा. सो यू कैन ऑलवेज डिफाइन कि तुम किस बेसिस पे करना चाहते हो. ओके, सो बेसिकली जितना मुझे समझ में आ रहा है, यू आर सेइंग कि इंटरसेप्ट सर्विस पे जब रिक्वेस्ट आ गया, सो टिल दिस Correct. पॉइंट यू हैव अपलोडेड टू द ऑब्जेक्ट स्टोर, राइट? एंड करेक्ट. उसके बाद डीबी में आपका मेटा डेटा अपलोड होता है. दिस ऑल विल हैपन इन अ सिंक. वी डोंट हैव एनी ऑप्शन हियर. नाउ Yes. आफ्टर दिस what happens is there are different workflows which will talk to both metadata and object stores, and they will perform whatever operations that they need to perform, right? करेक्ट. Okay. तो अब देर आर वी हैवंट टॉक्ड अबाउट टेक्निकल चॉइसेस हेयर, इसलिए मैं उसके अंदर क्यू और वो चीज अभी नहीं लगा रहा हूँ. वी कैन ऑलवेज पुट ऑन दोज कम्युनिकेशन मैकेनिज्म्स कि मेरा एसिंक्रोनस होगा, मैं कॉल बैक बेसिस पे करूंगा, या मेरा सिंक्रोनस होगा, या क्यू बेस्ड पब सब होगा. सो दोज आर द थिंग्स दैट आई हैवंट टॉक्ड अबाउट येट. वो थोड़ा सा उसके डिटेल के बाद है. दिस इज द कंपोनेंट ब्रेकडाउन करेंटली कि मेरा कंपोनेंट्स हैं आपस में कम्युनिकेट कौन कौन करेगा, कैसे करेगा. वी आर नॉट डिस्कसिंग राइट नाउ. Okay. तो ठीक है. So I think so you are done with this step, right? We can move on to next step. हाँ, तो दिस वाज देयर ना कि यहाँ से कैरो इधर जाएगा. तो ये तो सर मतलब इसको आप पुल कर सकते हो, राइट? वर्कफ्लो कैन टॉक टू बोथ इन अ पुल फैशन, राइट? आई थिंक बाकी लोग अपने पॉइंट दे सकते हैं, बट दैट्स व्हाट आई थिंक. वर्कफ्लो कैन टॉक अबाउट इन वो उसके अंदर बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं. सो फॉर एग्जांपल अगर हम कोई AWS का यूटिलिटी लेते हैं, फॉर एग्जांपल स्टेप फंक्शंस, तो स्टेप फंक्शंस से कम्युनिकेट करने के लिए देयर आर मल्टीपल थिंग्स. इट कैन बी अ सिंक्रोनस कॉल एज वेल कि भाई मेरे को अगर सिर्फ DB से रीड राइट करना है, दैट कैन बी वन ऑफ द स्टेप फंक्शन फ्लोज. वो मेरा सिंक्रोनस इन नेचर होगा, राइट? हाँ नहीं, अगर तो मेरा ठीक लॉन्ग है. हाँ, सो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, देयर आर वेरियस ऑप्शंस. लेट्स फ्रीज वन ऑफ द ऑप्शंस व्हिच बेस्ट सूट्स आवर डिजाइन राइट नाउ. ठीक है, मतलब दैट मेक्स सेंस. हाँ, तो मुझे एक तो ये है कि सर्विस जो होगा वो हाँ. वर्कफ्लो को एक ट्रिगर तो दे ही देगा, राइट? एक इवेंट दे देगा, तभी करेक्ट. फिर वर्कफ्लो विल बी एबल टू स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट, राइट? तो ठीक है. एक कनेक्शन सर्विस टू वर्कफ्लो होना चाहिए, हाँ. and then workflow can talk to DB and object store to perform its operations जो background में होगा. तो अभी जो है आई हैवंट कनेक्टेड सर्विस टू वर्कफ्लो. From my point of view, the trigger for upload or download anything is not supposed to be done from service. Service का काम है उसको upload कर देना. It will end there. जब upload हो जाएगा, it will send out an event which will trigger the workflow. हाँ, but वही that event I'm talking about, वो हाँ. event आप कैसे send कर रहे हो? या फिर मतलब या Event तो can work event can be आप क्यू से डाल सकते हो कि भाई यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा. It can send out an event कि आप लिसनर हो सकता है, पोलिंग इवेंट हो सकता है जो वर्कफ्लो इज कंटिन्यूअसली पोलिंग ऑन दैट कि जैसे जैसे आता जाएगा. इट कैन बी एन आर्ली जॉब कि उस पिछले घंटे में जितने नए आइटम्स आए हैं उसको हम लोग प्रोसेस करेंगे या 15 मिनट्स में प्रोसेस करेंगे. हाँ, तो आप अभी मतलब एक ऑप्शन क्या सजेस्ट कर रहे हो? अच्छा, फॉर मी मैं कह रहा कि फॉर bottleneck we can park that question, then we will discuss later. Otherwise we at least finish at least one code, then we will see one flow, then we will see where is the bottleneck and can we use different technology, can we remove this component, otherwise won't be able to finish. बट वही वो तो पॉइंट डिस्कस करना पड़ेगा ना. अभी तो इनकम्प्लीट फ्लो है ना, अगर until we put that point, right? So that's why मतलब I agree कि you can change it later on, but just to complete the flow, एक तो डिसाइड करना पड़ेगा कि वो पुश रखना है, पुल रखना है, बीच में काफका डालने का है, कैसे करने का है. तो रोहित सर ने पॉइंट बोला था कि उन्होंने सिर्फ एरो डिजाइन किया है, उन्होंने टेक्नोलॉजी पिक नहीं की है. सो उस वहाँ पे क्या स्केल होगा, कौन सी टेक्नोलॉजी पिक कर सकते हैं, वी विल डिस्कस लेटर. अभी जब हम लोग नंबर्स की मैथ करेंगे ना कि व्हाट इज रिक्वायर्ड कि हमारा आर्ली कितना है, उस बेसिस पे वी कैन डिसाइड कि हमको शेड्यूल्ड जॉब्स चाहिए कि क्या चाहिए. ठीक है, ओके फाइन, लेट्स मूव ऑन. अब तो ये वाला स्टेप तो चलो ठीक है, इतने पे छोड़ते हैं, राइट? दैट्स व्हाट यू सेइंग. किसी और नहीं, इट शुड, आई थिंक इट शुड मैच विद द रीडर, राइट? कि अल्टीमेटली व्यू करना है उसके लिंक प्रीवियस मतलब जो डायग्राम तो उससे कहीं लिंक होना चाहिए. नहीं तो ऑब्जेक्ट स्टोर है ना दोनों में, वही प्राइमरी स्टोर पे अभी डालो कहीं पे ना. हाँ, वो ऑब्जेक्ट स्टोर है तो हमारे पास.
तो ऑब्जेक्ट स्टोर तो एक्चुअल फाइल थी ना, इनकोडिंग बाद नया स्ट्रक्चर बनेगा, नया मेटा डेटा अपडेट होगा, और सर डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट है। रोहित सर आप म्यूट पे बोल रहे हो क्या? हाँ मैं म्यूट पे बोल रहा था आई एम सॉरी। तो मेरा पॉइंट ये था कि डिस्ट्रीब्यूशन इज वन ऑफ द स्टेप्स दैट विल हैपन आफ्टर एवरीथिंग हैज बीन कंप्लीटेड ऑन वीडियो प्रोसेसिंग। वीडियो अपलोड हो गया, एक प्राइमरी हमारा ऑब्जेक्ट स्टोर है जिसमें गया ओरिजिनल वीडियो जिसमें गया था, we have some mechanism which is workflow is getting triggered जहाँ पे encoding होती है, then we distribution, then we get notifications, send out notifications can be writing back to some DB which can be as simple as that metadata में जहाँ पे हम लोग status store कर रहे हैं of the videos if it can be viewed or not, something like that, जहाँ पे हमारा video metadata है. Then this distribution is associated with CDNs, and this distribution can also be associated, they can have a separate component for this CDN में ही, where we can have an object store, a separate object store जहाँ पे हमारे all the visible जो हमारे videos देखने हैं वो सब associated होंगे। नहीं ये पार्ट में समझा नहीं, CDN में ऑब्जेक्ट स्टोर की क्या जरूरत है? नहीं CDN में ऑब्जेक्ट स्टोर की जरूरत नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा तो इफ वी हैव क्रिएटेड 4 काइंड्स ऑफ वीडियोस, 4 क्वालिटी वीडियोस, तो जो हमारा फाइनली प्रोसेस्ड वीडियो है इट कैन बी अ सेपरेट फॉर्मेट आल्सो, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि भाई उसने वीडियो स्टोर किया, अब मुझे FLV में रखना है, किस चीज में रखना है, दैट इज डिपेंडिंग। तो वो सब एनकोडिंग करने के बाद व्हेन आई हैव टू फाइनली डू द डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज वेयर माय सेपरेट टास्क ऑफ पुटिंग इट टू ऑब्जेक्ट स्टोर, एंड आफ्टर दिस उसके बाद मेरा आएगा जहां से मैं आई विल पुश इट टू CDNs। Sir, encoding isn't it a sort of a smaller service and writing back to the object store? वो different object store में कर रहे हैं हम लोग। It will be writing to that object store only. I'm right. You are right. तो ये मेरा वहीं पे जाएगा। Then we will save some metadata around it, right? कि अभी ये वाला में ये वाले format में, and service will take a call कि अभी उसका bandwidth कितना है, then so something like that. Yeah, that's right. मैं मतलब कहना वही चाह रहा था, इसलिए मैंने CDN बनाया था पहले उसका। तो जो एनकोडिंग वाला पार्ट है उसके बाद it can be done here. But these objects, both the object stores are same, right? That totally depends on us. कि वो us का मतलब ये है कि we can have 2 different stores, कि भाई हमारा अगर प्रिजर्व करना है तो हमारा ये this is our primary store that is separate from the encoded store. वो separate रखने का पॉइंट ये है कि डेटा लॉस से बचने के लिए। No. We always have the primary store. अगर उसको बाद में और किसी और फॉर्मेट में एनकोड करना है then we still have it, we can use it. वो तो I mean that is just one point out of it, I guess. I think so पहला वाला जो है that is raw object store और ये processed object store है। हाँ ऐसे कह सकते हो, मतलब that original के हिसाब से कह रहा था this can be marked as raw and this can be processed. हाँ बट एक चीज आई थिंक हमें डिस्कस करना चाहिए। सो जैसे URL आपने जनरेट कर लिया एक ऑब्जेक्ट का, राइट? सो द सेम URL विल बी एसोसिएटेड विद द वेरियस डिफरेंट बैंडविड्थ साइज के जो वीडियो है, राइट? सेम URL विल बी देयर, और डिफरेंट URLs रख रहे हो आप। आई थिंक YouTube में सेम ही URL रहेगा। So okay, so there's a difference. CDN URLs different होंगे, get URL सेम होगा। नहीं मैम, पहले एक मतलब एक रिसोर्स का जो प्राइमरी URL होगा उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो सेम होगा। बाद में CDN URLs तो आप रन टाइम पे फिगर आउट करोगे, राइट? करेक्ट, तो वो सेम होगा। हाँ वो सेम होगा। ओके, सो वो आपका वीडियो एनकोडिंग में हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, वेयर इट विल हैपन? आई थिंक कुणाल, आई थिंक जब हम यूज केस पिक करेंगे एंड फ्लो कवर करेंगे तब वो सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे कि कैसे फ्लो करेगा। लेट्स से व्हेन यूजर कम्स एंड हिट द URL, व्हाट हैपेंस इन दैट डायग्राम, देन वी विल डिस्कस ईच स्टेप्स इन डेप्थ इफ यू वांट टू एक्सप्लोर। बट यार जब कंपोनेंट डायग्राम बना तो आई शुड बी एबल टू सी ना जो मेरा प्राइमरी काम हो रहा है वो किस कंपोनेंट में हो रहा है। एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि हाँ इस स्टेप में ये वाला काम करेंगे, राइट?
इस ब्लॉक that डायग्राम we में can लिखना discuss. होगा। Okay, that we will discuss. तो अभी मैंने क्या इसमें क्या हुआ कि वीडियो एनकोडिंग इज हैविंग अ लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी ऑन इट्स ओन, तो ये कंपोनेंट विल फर्दर ब्रेक डाउन। ओके, तब इसको फर्दर ब्रेक डाउन करने के पहले मैं इसको जो है कर देता हूँ। अच्छा, वहाँ जो प्रोसेस्ड ऑब्जेक्ट स्टोर है उसमें मल्टीपल रेजोल्यूशन के वीडियो सेव कर रहे हैं या? हाँ, वो मल्टीपल रेजोल्यूशन के स्टोर होंगे वहाँ पे, राइट। ओके। मल्टीपल रेजोल्यूशन होंगे। और हमने एक बात और कही थी ना कि बैंडविड्थ वाली बात जो की थी कि सबको सीमलेस दिखे, तो चंक करेंगे पहले, ओके, सेगमेंटेशन फिर एनकोडिंग। मतलब जो प्लेयर है वो हर एम आई ऑडिबल कुणाल? यस Yes, हाँ yes. सर, यस सर। हाँ सर। मैं कह रहा हूँ कि वो जबकि जो प्लेयर है वो डिसाइड करना चाहिए ना कि हर एक्स सेकंड बाद के भाई कौन सा रेजोल्यूशन वीडियो दिखाना है मुझे, डिपेंडिंग ऑन बैंडविड्थ, ठीक है। तो हमारे एक वीडियो फाइल अगर 1 मिनट की है और हम 6 सेकंड का चंक कर रहे हैं तो 10 करस्पॉन्डिंग चंक बनेंगे उसके, ठीक है। आई थिंक सर, तो जितना मैं समझ रहा हूँ आप उसमें जा रहे हो कि जैसे रन टाइम पे मेरे पास एक नेक्स्ट चंक है, सो बेसिकली व्हाट द ब्राउजर इज डूइंग इज वो फिगर आउट कर रहा है कि यूजर का बैंडविड्थ कितना है इंटरनेट का, एंड बेस्ड ऑन दैट ही इज डिसाइडिंग कि बेसिकली वो लो बैंडविड्थ पे काम कर रहा है, तो नेक्स्ट 10 सेकंड्स के लिए जो मेरे को चंक पिकअप करना है वो लो बैंडविड्थ वाला चंक पिकअप करना है, और उसके या तो हाई बैंडविड्थ पिकअप करना है, राइट। करेक्ट। बट आई थिंक हमने जो अप्रोच अभी यहाँ पे लिया है उसमें हमने ये लिया है कि हमने मतलब हमने इनिशियल लेवल पे ही जनरेट कर लिए हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू चंक हमने रॉ वीडियो के ही, जैसे एक मेरा 10 मिनट्स का वीडियो था तो उस वीडियो का ही मैंने 3 फॉर्मेट बना लिया और मैं एक ऑन अ फ्लाई उनमें से एक कोई सर्व कर दूंगा डिपेंडिंग ऑन यूजर्स चंक। दिस इज लाइक अ ब्लैंकेट अप्रोच, आपका थोड़ा और ग्रैनुलर हो जाएगा। So I have one question. Hold on, guys, just a minute, clarification. So adaptive नहीं हुआ ना वो 10 मिनट वो तक? अडैप्टिव नहीं हुआ, मतलब आपका ज्यादा बेटर अप्रोच है। आई एग्री टू दैट, यस। इवन पुनीत सर के पॉइंट में ऐड करते हैं कि मतलब चंक के टाइम पे भी अगर लेट्स हमारा कोई लेट्स सपोज कि हाफ जीबी का फाइल लेना है, तो उसमें भी अगर आपका जब रिक्वेस्ट आएगा तो तुम हाफ जीबी का डेटा नहीं डिलीवर करने वाले। वी नीड ए डेटा फ्रॉम सम ऑफसेट एंड हाउ मच डेटा वी कैन डिलीवर इन वन कॉल, एंड उसके बाद उसकी बैंडविड्थ कितनी है, देन कौन सा चंक पिक करना है। तो ये भी आएगा कि पहले आई थिंक फर्स्ट encoding then chunking and then Right. based on I think so based on Gahoi's and Puneet's point, what I see is कि ऐसा हो रहा है कि आपको मतलब सही बात है कि हम लोग स्ट्रीमिंग सर्वर बनाना पड़ेगा हम लोग को। ऐसा नहीं हुआ कि पूरा वीडियो यूजर के ब्राउजर पे डाउनलोड हो जाएगा एंड देन वो प्ले होगा, दैट वुड बी वेरी बैड एक्सपीरियंस। हाँ, वो तो पॉसिबल नहीं है कुणाल, क्योंकि विदाउट एडेप्टिव स्ट्रीमिंग तो YouTube पर मतलब सोच नहीं सकते आप, टू बी वेरी फ्रैंक। राइट। तो आई थिंक वही करना चाहिए हम लोग को। लेट्स डिसाइड कि हम लोग जो स्मॉलर चंक्स जो जहाँ पे रोहित सर एनकोडिंग कर रहे हैं, तो एट दैट पॉइंट वी विल जनरेट सम 5 सेकंड्स का या 1 या 2 सेकंड, मतलब 5 सेकंड से 10 सेकंड्स के चंक्स जनरेट करेंगे, और वो चंक्स जो जनरेट करेंगे वो डिफरेंट बैंडविड्थ के रिलेटेड होंगे, 3 और 4 काइंड ऑफ टाइप्स, और उसके बाद CDNs पे वही फाइल्स जाएंगे एंड इट विल बी द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ प्लेयर टू एग्रीगेट दोस एंड देन शो इट, राइट। नहीं, प्लेयर कभी एग्रीगेट नहीं करता, उसके लिए प्रोटोकॉल्स हैं कुणाल। आई थिंक वी ऑल कैन वी शुड नो कि एडेप्टिव स्ट्रीमिंग में या तो पीपल यूज MPEG का डैश प्रोटोकॉल, MPEG डैश या फिर HLS है। तो नहीं तो एक्चुअली रिक्वेस्ट तो प्लेयर ही करेगा ना, कि प्लेयर विल डिसाइड कि नेक्स्ट जो मैं नेक्स्ट 10 सेकंड्स की जो वीडियो ला रहा हूँ, जो चंक ला रहा हूँ, दैट चंक इज अ हाई बैंडविड्थ चंक और अ लो बैंडविड्थ चंक, राइट। हाँ, दैट प्लेयर विल डिसाइड दैट। then aggregation will happen at the player level, right? Yes. लेकिन प्लेयर कुछ एग्रीगेट करना नहीं है, मतलब प्लेयर नीड नॉट नो ऑल द चंक्स इंफॉर्मेशन, मतलब प्लेयर को केवल मास्टर प्लेलिस्ट का पता होना चाहिए, बाकी स्टेप सर्वर पे पड़े हुए हैं। मैनिफेस्ट फाइल से उसको पता चलता रहेगा कि नेक्स्ट चंक क्या है, और बेस्ड ऑन द प्रीवियस चंक का डाउनलोड टाइम कि नेक्स्ट चंक कौन सा मुझे पिक करना चाहिए, कौन से रिजोल्यूशन का। ओके, या प्लेयर को देखो, प्लेयर को 2 चीज पता है, या करंट स्टेट क्या है वो पता है, करंट यूजर का बैंडविड्थ क्या है ये पता है ना।
बस ये तो इन्फॉर्मेशन काफी है उसको नेक्स्ट चंक पिक करने के लिए सर्वर से, उसको और ज्यादा जानना नहीं है कि हमने फाइल को 50 भाग में तोड़ा है या 100 पार्ट में तोड़ा है, दैट इट शुड नॉट नो. So I think there is nothing called as aggregation which I was using. Yeah. So just उसको जो भी फाइल डाउनलोड होता है वो उसको डिस्प्ले कर देना है, right? That's all. So here the video player we are considering on the HTML on the browser, right? हाँ. Video player on the browser, yeah, your own player or whatever be. ठीक है, तो आई थिंक दैट अप्रोच मेक सेंस. तो ठीक है, लेट्स अज्यूम कि हम लोग जहाँ एनकोडिंग लिखा है वहाँ पे वी आर यूजिंग फॉलोइंग दिस ग्रैनुलर अप्रोच. और कोई पॉइंट बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप? तो जो चंकिंग वाला हो रहा है, रीडिंग वाला, उसको सीडीएन हैंडल कर रहा है, राइट? बिकॉज़ सीडीएन से रीड कर रहे हैं हम लोग. सो ब्रजेश, वो जो एनकोडिंग जहाँ पे हो रही है वर्कफ्लो में, वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ एनकोड जनरेट हो जाएंगे और वो प्रोसेस सर्वर पे भी रहेगा, प्रोसेस्ड ऑब्जेक्ट स्टोर पे भी, और वो सीडीएन पे भी रहेगा. बट आई थिंक सीडीएन को बस आई थिंक फॉल बैक यूआरएल पता रहता है, राइट? और आई डोंट नो कि उसको ये पता हो कि किस स्टोर से जाके पिक करना, कौन सा चंक, कौन सा वीडियो. नहीं, सीडीएन को वो नहीं पता रहेगा. सीडीएन पे ये रहेगा कि इस यूआरएल से मैप एक 10 सेकंड्स का ऑब्जेक्ट पड़ा रहेगा वहाँ पे. अब इट्स रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द ब्राउजर टू फिगर आउट कि कौन से चंक डाउनलोड करने हैं, नेक्स्ट चंक कौन सा डाउनलोड करना है. तो बेसिकली वो आपका गेटवे के थ्रू ही आना चाहिए. I mean, if you are asking कि chunks कहाँ है, तो chunks have to be both on the file store as well as CDN. दोनों जगह होने पड़ेंगे. Right. CDN is not a simple CDN. It's doing more work, right? It's not just a static content server. No, it is a static content server. कोई लॉजिक नहीं होगा. नहीं, तो in that case it's just a fallback URL which hits your backend service, and your backend service determined based on the what is the URL, which segment you need to pick from which storage. ये क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन कैन आई आस्क? I'm asking this important But we are directly communicating with the CDN. We're not going to API gateway. Guys, I think confusion is के हम लोग ये डिसाइड करना चाह रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे कि प्लेयर चंक पिक कर पा रहा है या डिसीजन सर्विस ले रही है, राइट? इज दैट द क्वेश्चन? Yes. नेक्स्ट चंक कैसे पिक होगा, राइट? Right, sir. Right. I mean, if you want to go that details, just give me, like, you can give me whenever you want, 5-10 minutes, I can tell you that. ठीक है? नहीं, आप अभी बता दो ना. अच्छा, तो I have some, ठीक है, yeah, it can be little low, but जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ. यार प्रेजेंट कहाँ से करना है इसमें? ये नीचे है. Share screen. भाई मेरी विजिबल हो जाए स्क्रीन तो बताना. I have some notes actually. अभी तक तो आप ही देख रहे हो. हाँ, आ गया. Is it visible now? Yes. हाँ, तो इसमें Yes sir. ठीक है. So I think this has some small points. Whatever we had implemented, उसको मैंने IP रिमूव करके हटा रखा है थोड़ा सा. So basically जो प्रोटोकॉल सपोज HLS we can assume, ठीक है? HTTP लाइव स्ट्रीमिंग और MPEG डैश. डिफरेंस ये है कि HLS का नेटिव सपोर्ट है HTML5 में, बस एडवांटेज इतना ही है, बाकी तो दोनों सेम ही है. तो आई थिंक इस डायग्राम को देख लो, दिस विल मेक इट क्लियर. और एक API का रिस्पॉन्स. तो जैसे कि यू गाइस कैन सी मीडिया लिंक, राइट? Yes. So normally media link is a MP4 file, correct? Just give me 1 minute. Sorry. Am I audible? Yes. Yes sir. So media link में normally either we can send MP4, जैसे कि अगर सिंगल फाइल है तो MP4 का लिंक हो जाएगा जो भी कुछ है, ठीक है?
इस केस में whenever we are talking of HLS प्रोटोकॉल, जब हमने चंक्स किए हैं वीडियो के, तो एक मास्टर प्लेलिस्ट फाइल बन जाएगी हमारी which is has an extension of M3U8. अच्छा, प्लेयर को पता है अगर कुछ वीडियो के बारे में, it does not even know MP4 फाइल लोकेशन, कुछ नहीं पता, उसको केवल एक M3U8 फाइल पता है. ओके ओके, तो ये जो पहला लिंक है, आई होप माई पॉइंटर इज विजिबल, राइट? यस. तो ये पहला लिंक है उस मास्टर फाइल का है जिसे मैं मास्टर प्लेलिस्ट फाइल बोल रहा हूँ. ओके. उस प्लेलिस्ट फाइल के अंदर में, जैसे तुमने कहा कि मान लो मैं 3 तरह के रेजोल्यूशन लेने हैं, HD, अल्ट्रा HD या एटसेट्रा, करेक्ट? तो जितने तरह के हमें रेजोल्यूशन लेने हैं, उतनी तरह की सब मैनिफेस्ट फाइल बनी है, मतलब 3 और फाइल बन गई. अगर 4 रेजोल्यूशन लेते तो 4 फाइल बन जाती. ओके. एंड ईच ऑफ दीज फाइल्स नोज दीज चंक्स. ओके, अब एग्जांपल ले लेता हूँ. आई नो आई के दिक्कत होगा, तो जस्ट फोकस ऑन द हाई लेवल थिंग्स. ज़्यादा फोकस मत करना. देयर सम बोल्ड कंटेंट हियर. M3U8 फाइल कैसी दिखती है? वो ऐसी होती है. तो देयर इज बैंडविड्थ. कुणाल, यू सेड नो बैंडविड्थ होगा, राइट. तो ये इस बैंडविड्थ की जो प्लेलिस्ट फाइल है वो ये है, ये बता रहा है, करेक्ट? हाँ, और ठीक है, गॉट इट. दूसरे बैंडविड्थ की जो डिफरेंट प्लेलिस्ट फाइल है वो ये है. तो हमारे पास मिड हाई रेजोल्यूशन, हाई और अल्ट्रा हाई के 3 सब मास्टर प्लेलिस्ट फाइल हो गए, करेक्ट है? राइट. ओके. इसका मतलब है कि अगर प्लेयर को ये पता है M3U8, तो प्लेयर बैंडविड्थ के हिसाब से इन तीनों में से एक फाइल पिक करेगा. ओके, बट ये भी तो रन टाइम पे होना चाहिए ना सर? मतलब रन टाइम तो हो रहा है ये सब. रन टाइम पे तो हो पहली रहा है. बार पे मैंने पहला फाइल पिक किया, बट मे बी नेक्स्ट कॉल पे मेरे को सेकंड फाइल से कोई कंटेंट पिक करना पड़े ना? हाँ, वो हर चंक इंटरवल के बाद प्लेयर हैज एन ऑप्शन टू कम बैक. तो हर चंक पे प्लेयर डाउनलोड करता है क्या ये फाइल? ये सारी .ts फाइल्स हैं, सारे चंक्स हैं, तो प्लेयर कीप्स बफरिंग. तो दैट्स व्हाई यू सी बफर्ड कंटेंट. थोड़ा देखते हो ना, 6 सेकंड का बढ़ा, फिर एक संग 6 सेकंड का बढ़ा, ऐसा होता है ना, इतना बड़ा फिर इतना बड़ा फिर इतना बड़ा. तो वो इसीलिए होता है कि कितना हमारा वो है. और एक एग्जांपल ले लो कि एक सब प्लेलिस्ट फाइल के अंदर कैसा दिखता है. चंक्स ऐसे होते हैं, देखो सिंपल. वो बताता है कि ये चंक जो है इतने सेकंड का है, ये फाइल है. फिर नेक्स्ट चंक का लोकेशन ये .ts फाइल, ये .ts फाइल, ये .ts फाइल, ऐसे ऐसे करके उसको पता है बस. तो HLS प्रोटोकॉल, तो आप सपोज करो ये चंक प्ले हो रहा था HD2 प्लेयर में. ओके. और स्पीड घट गई, तो जो प्लेयर है वो कहेगा कि लो स्पीड वाला चंक दो मुझे. तो मास्टर प्लेलिस्ट फाइल कहेगा कि गाइस उसको ये वाला फाइल रेंडर करो जो कि लो स्पीड की है. और उस लो स्पीड फाइल में से रेस्पेक्टिव चंक उठा के वो डिलीवर करेगा. ऐसे दिखता है. मेक सेंस? तो सेम टाइम स्टैम्प पे जाएगा दूसरी फाइल में, एंड उस टाइम स्टैम्प का जो फाइल है वो CDN से डाउनलोड कर लेगा. एग्जैक्टली. तो उसको अब हो सकता है कि HD2 के बाद HD3 की जगह SD3 डाउनलोड करना पड़े. तो प्लेयर क्या कर पा रहा है इस समय पे कि रन टाइम पे बैंडविड्थ के हिसाब से हर 6 सेकंड बाद उसके पास एक ऑप्शन आ रहा है, 6, 8, 9 सेकंड बाद, कि अब उसे नेक्स्ट चंक कौन सा दिखाना है. मेक सेंस? बस इतना ही. एंड दिस इज देयर. अच्छा, ये पंडित से ये मतलब फाइल के अंदर फाइल है, मतलब काइंड ऑफ लिंक लिस्ट बना हुआ है कि कौन सा? नहीं, ये सीक्वेंस है बस. ये सीक्वेंस में लगी हुई है. ये लोकेशन है अंदर में यार. ये HD0, HD1, HD2 ये फाइल है यार. एग्जैक्टली फाइल्स हैं, फाइल पड़ी हुई AWS से पड़ी होंगी. एग्जैक्टली. हाँ, मतलब इनका लिंक बना, एक फाइल के अंदर दूसरी फाइल का लिंक है, फिर नेक्स्ट चंक का लिंक होगा, ऐसे करके. हाँ. तो मेरी एक इस पर्टिकुलर फाइल के 7 वो बने हैं. एक रेजोल्यूशन में 7 फाइल बनी है, ठीक है? विच सिंपली मींस अगर मैं 3 रेजोल्यूशन में रख रहा हूँ अपनी फाइल को, तो 21 चंक बने होंगे टोटल. 7 HD के, 7 अल्ट्रा HD के और 7 स्टैंडर्ड HD के. गॉट इट. तो ऐसे ब्रेक होके बना होगा और इट कैन रन टाइम पे पिक. तो ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेयर का है. इसीलिए प्लेयर अंडरस्टैंड्स HLS प्रोटोकॉल. तो प्लेयर आल्सो नोज द प्रोटोकॉल. सर्वर को कोई डिसीजन लेना ही नहीं है. आफ्टर क्रिएटिंग दीज फाइल्स वी नेवर वरी अबाउट कि मैं डिसीजन लूं कि बैंडविड्थ क्या है. वो प्लेयर डिसीजन ले रहा है. प्लेयर विल पिक अप द चंक. यही तो प्रोटोकॉल का एडवांटेज होता है, राइट? ओके, आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू सर कि लेट अस सपोज अगर मतलब कि
अगर बाद में हमारे पास ये रिक्वायरमेंट आती कि हमें कोई नया मतलब कि फॉर्मेट सपोर्ट करना है, तो वी नीड टू अपडेट ऑल दीज फाइल्स। यार तुमने तो लंबा क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी हेल्प के लिए बता देता हूँ कि ये काम भी हम लोग नहीं करते। इफ यू जस्ट वांट, इज दिस विजिबल गाइस? यस यस। हाँ, तो हर एक लाइब्रेरी होती है, यू गाइस कैन जस्ट गो थ्रू, वो लाइब्रेरी यूज करो। जैसे कि मैप पे वर्क कर रहे हो तो आप S2 लाइब्रेरी यूज करोगे गूगल की, बाकी क्यों दिमाग लगाओगे उतना, लेट्स ओनली रिसर्च की जितना जरूरी है। तो FFmpeg फाइल है, मतलब एक मॉड्यूल है, हर लैंग्वेज में होता है। इस वो बेसिकली आपकी इनपुट स्ट्रीम फाइल को आप उसे स्पेसिफाई कर दो, आउटपुट फॉर्मेट क्या है और कितने चंक चाहिए, वो अपने आप जनरेट करता है सब कुछ, ये हमें कभी नहीं करना पड़ता। ओके। ये FFmpeg लाइब्रेरी का फंक्शन ही ये है, हमें उसे बता दे रहे हैं कि वीडियो क्वालिटी कौन कौन से चाहिए, मिड हाई, हाई, अल्ट्रा हाई और HD, ठीक है। ओके। कितना ब्रेकअप चाहिए, 6 सेकंड के चंक चाहिए लगभग। ओके, आउटपुट एक्सटेंशन क्या हो, M3U8, ऐसे करके ब्रेक कर देगा, वो उसका फंक्शन है। तो देयर इज लाइब्रेरी FFmpeg which is responsible for this. So this will make like complete seamless कंटेंट, छोटा छोटा करके उठाएगा प्लेयर और सीमलेसली एक्सपीरियंस मिलेगा यूजर को। दिस इज इंपॉर्टेंट इन एनी स्ट्रीमिंग डिजाइन, ठीक है। बस दैट्स इट गाइस, आई मीन यू आर कैन टेक ओवर, काफी डिटेल हो गया। ओके। एक्चुअली मेरा लास्ट प्रोजेक्ट ऐसे ही था, मतलब ROV से वीडियो फाइल्स आ रहे थे, स्ट्रीम आ रहा था, उसको डिस्प्ले करना था। ओके। हाँ हाँ, तो या गाइस यू टेक ओवर, आई थिंक दिस वाज इंपॉर्टेंट टू ऐड हियर इन दिस डिजाइन। हाँ ठीक है, ठीक है। आई मीन इज इट लिटिल क्लियर? कुछ कांसेप्ट समझ में आया ना, बेसिक बुनियाद समझ में आ गया होगा ना? हाँ नहीं, वो तो समझ Yes, में आया कि कैसे स्ट्रीम होगा, लॉजिक जो कहाँ पे रिसाइड करेगा, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। ओके कूल, ठीक है, तो मूविंग ऑन, रोहित सर। हाँ सर। आपकी साइड से क्या इनपुट है? नहीं, मैं वही FFmpeg में उसके लिए जा रहा था, क्योंकि ब्रेकडाउन वो जो है ना, मतलब सर ने इसलिए बताया कि क्योंकि अभी हम लोग उस लेवल पे जा रहे थे धीरे धीरे। मेरा पॉइंट ये था, अभी हाई लेवल पे हम लोग कंपोनेंट ब्रेकडाउन पे थे कि भाई हमको चंक्स क्रिएट करने हैं, दैट आइडिया इज सफिशिएंट डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से। करेक्ट, आई जस्ट इंट्रोड्यूस, क्योंकि आई थिंक लोगों को कंफ्यूजन हो गया, प्लेयर करेगा या सर्विस करेगा ये काम, तो वो क्लैरिटी आ गई होगी कि प्लेयर ही कर लेगा प्रोटोकॉल के द्वारा। ठीक है, या तो सर्वर जस्ट नीड्स टू ब्रेक द चंक्स एंड कीप द चंक्स, दैट्स इट। हाँ, तो वो हमारा प्लेयर जो हमारा UI है, जो वो दैट शुड बी स्मार्ट इनफ टू बी एबल टू एनकोड एंड डिकोड। वो कैसे करेगा? ऑब्वियसली नाउ वी नो कि HLS प्रोटोकॉल यूज करेगा। अदरवाइज ये अज्यूम किया जा रहा है कि हमारे पास स्ट्रीम आ रही है डेटा की, तो वो अपने आप उसको कर लेगा, हैंडल कर लेगा। गॉट इट। क्योंकि अब वो इम्प्लीमेंटेशन पे जा रहे थे। तो आई थिंक राइट स्टेप से मूव ऑन कर सकते हैं आप, राइट? नेक्स्ट स्टेप पे। करेक्ट। ये मुझे मल्टीपल क्यों दिख रहा है? तो अभी हम लोग यहाँ पे थे कि भाई हमारा अब इसके अंदर ID जनरेशन होगा, सेगमेंटेशन होगा, एनकोडिंग होगी, ये 3 चीजें हम लोग करने वाले हैं। करेक्ट। इज देयर एनी अदर स्टेप दैट यू सी कि इसमें जरूरत पड़ेगी? आई थिंक बस थंबनेल जनरेशन वाला पार्ट था, वो तो वो भी ट्रिवियल है, उसे छोड़ दो। मतलब वो सोचा तो था मैंने एनकोडिंग के उसके साथ ही थंबनेल जनरेशन वाला पार्ट है वो। तो इसमें यहाँ ये मेंशन कर सकते हैं, मे बी जो तुम लोग बात कर रहे थे कि जो वर्कलोड में कर रहे थे ना, कि ये सारा कंटेंट कहीं क्यू वगैरह में है, जिसके लिए मल्टीपल लिसनर्स हैं, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। एक थंबनेल जनरेट करने का काम कर रहा है, एक सेगमेंटेशन एनकोडिंग काम कर रहा है, मे बी तीसरा उसे रिकमेंडर भेज रहा हो या कहीं और, देख नहीं मल्टीपल कंज्यूमर्स फॉर योर स्ट्रीम। या करेक्ट, ठीक है। और हम रिकमेंडेशन इसमें किया था क्या? नहीं, शामिल नहीं करेंगे रिकमेंडेशन, बस रिकमेंडेशन नहीं किया था। नहीं आई मीन वो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में रिकमेंडेशन नहीं था ना? नहीं, हटा दिया था। हमने स्कोपिंग में उसको आउट कर दिया था। आउट कर, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है उसका यार। हाँ वो ऑब्वियसली ये रिकमेंडेशन एक अलग ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो पूरा। हाँ, वो रोहित एक दिन लेगा क्लास की, तो आगे बढ़ो इसमें डिजाइन में। तो अभी ये भी ड्रॉप करें स्ट्रीमिंग, या रखना है स्ट्रीमिंग को? स्ट्रीमिंग आई सजेस्ट। वैसे स्ट्रीमिंग में क्या दिक्कत है भाई? भाई लोगों, जरा मैं सुनूं जरा। हाँ, मैं भी जानना चाह रहा था कि ऐसा क्या है उसमें अंदर।
तो सर ने बता ही दिया ना, पूरा हैंडल कर लेगा। देखो नहीं, अब स्ट्रीमिंग में वही अरे वो लाइव स्केलिंग की बात है ना, स्केलिंग के live इशू आते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग स्केल कैसे करेंगे? इफ लाइव सेम वीडियो स्ट्रीमिंग की इज बात है, वॉच स्ट्रीमिंग नहीं है, लाइव स्ट्रीमिंग है, कुछ कंफ्यूजन है अब। ओह, हाँ लाइव स्ट्रीमिंग, बट वो भी तो एक डिफरेंट वो है ना, एक प्रॉब्लम स्टेट। वो भी अलग ही रखते हैं, ठीक है, वो अलग है, वो राइट का नहीं है प्रॉब्लम, वो डिफरेंट प्रॉब्लम है। लेकिन मैं मेरे पे एक इनपुट है, आई थिंक विच इज राइट टू डू हियर बिफोर वी रैप अप। यार मैं तो बार बार यही भूल जाता हूँ कि प्रेजेंट कहाँ से करते हैं ऐसे। कहाँ था बे, कहाँ बोले तुम लोग, किधर है? नीचे सर एक बार दिखा दो करके। ओके ओके सॉरी, बस एक इनपुट वहां पे दिखा सकता था कि शेयर हुआ स्क्रीन। नहीं सर, नहीं, तो स्लो है यार मामला। उसमें स्टार्ट शेयरिंग भी क्लिक करना पड़ता है, स्क्रीन शेयर के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट शेयरिंग। अबे एक बार तो शेयर किया है ना। वो तो अब के आ ही नहीं रहा यार, कुछ पता नहीं क्या हो गया, कुछ तो गड़बड़ है। ये किसी ने शेयर कर रखा है तो नहीं करने देगा क्या, ऐसा है क्या? सर आपका ऑलरेडी शेयर लग रहा है मुझे, जब वो वाला फाइल। हाँ तो शेयर है, विजिबल। यस, ओके हाँ, स्ट्रीमिंग के लिए बस एक बहुत ही, हम लोग भी स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, पता है बहुत ही छोटा सा चेंज है गाइस स्ट्रीमिंग में, कि इन प्लेलिस्ट फाइल में जिसमें चंक की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, ये HD012, यहाँ पे एक चीज पड़ी है मीडिया सीक्वेंस 0, ठीक है। तो मीडिया सीक्वेंस 0 बताता है केवल कि पहला चंक कौन सा है इस फाइल में। आइडियली वैसे तो सीक्वेंशियली है, लेकिन फिर भी एक इंफॉर्मेशन है कि पहला चंक जो है ये है, ये फाइल, ठीक है। तो स्ट्रीमिंग में कुछ नहीं करना है, इस जो इंसर्शन हो रहा है इस फाइल में ही जो कंटेंट आया उसको, इस चंक को स्टोर किया और मीडिया सीक्वेंस को इंक्रीमेंट करते चले गए, बस 1 2 3 4, और तो प्लेयर को पता पड़ जाएगा कि 0 के बाद 1 उठाना है, 1 के बाद 2 उठाना है, 2 के बाद 3। तो HLS प्रोटोकॉल्स, बेसिकली HLS का फुल फॉर्म ही है ना, HTTP लाइव स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल, करेक्ट? हाँ, वो बनी लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ही है। तो इसमें मीडिया सीक्वेंस को आपको बस इंसर्ट करता जाना है FFmpeg लाइब्रेरी के थ्रू, कि 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया। तो प्लेयर, आपके पास चंक पहले से नहीं थे, रन टाइम पे वो चंक्स आ रहे हैं, आप रन टाइम पे उन्हें स्टोर कर रहे हो चंक को, और इस फाइल को अपडेट कर रहे हो बेसिकली आप बस। तो मीडिया सीक्वेंस 0 है, फिर मीडिया सीक्वेंस 1, ये इंक्रीमेंट होता जाएगा। ओके तो केवल इतना ही फंडा है रियल स्ट्रीमिंग में, कि फाइल दिस M3U8 का सब प्लेलिस्ट फाइल जो है, इट्स कीप गेटिंग अपडेटेड, दिस यू हैव टू अपडेट थ्रू योर कोड, बस। और प्लेयर जो होगा लाइव स्ट्रीम के केस में, ये जो मास्टर लिस्ट वाली जो फाइल है उसको बीच बीच में डाउनलोड करता रहेगा प्लेयर। हाँ, तो इसीलिए प्लेयर को कभी भी उसको नो कैश रखना है, नो कैश। जो प्लेयर साइड में इस फाइल के लिए नो कैश, गलती से भी कैश ना करे वो, ये सेकंड इनपुट है, वेरी गुड इनपुट पॉइंट यू ब्रॉट, कि गलती से कैश कर लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो उसको हर बार उस फाइल को उठाना है, इस फाइल को एक्चुअली। तो वो जान लेगा कि मीडिया सीक्वेंस 0 के बाद 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, एंड विल कीप ऑन डूइंग दैट, दैट्स इट, बस इतना ही है वैसे तो। सो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि पहले से वीडियो अपलोडेड नहीं है, तो बैकएंड में कोई जॉब ने ऑलरेडी ये आपकी मैनिफेस्ट फाइल बना नहीं रखी है, सो दिस शुड बी जनरेटेड एवरी टाइम रन टाइम के ऊपर, राइट? हाँ भाई, क्योंकि कंटेंट रन टाइम आ रहा है पहले। हाँ राइट, जब कंटेंट रन टाइम आ रहा है तो चंक रन टाइम पे आया, तो रन टाइम पे अपडेट कर पाऊंगा ना मैं। हाँ राइट भाई मैं कैसे तोड़ दूं, मेरे पास वीडियो 10 मिनट की थी नहीं कभी, मेरे पास तो हर 6 सेकंड का एक चंक आ रहा है। हाँ, तो हर 6 सेकंड के चंक पे मैं इस फाइल को अपडेट कर देता हूँ बस, और प्लेयर को पता पड़ जाता है कि मीडिया सीक्वेंस 0 के बाद 1 उठाओ, 2 उठाओ, 3 उठाओ, वो कर लेगा उस काम को बाकी। तो बेसिकली प्रोटोकॉल ही है। लाइव स्ट्रीमिंग कोई खुद से इंप्लीमेंट कर ले, ये तो मतलब इंडस्ट्री में ऐसा नहीं किया जाता, इसलिए 2 ही प्रोटोकॉल यूज हो रही हैं, या तो MPG यूज कर लेगा या कोई HLS यूज कर लेगा। तो लाइव स्ट्रीमिंग में इनपुट वी कैन डिस्कस फर्दर डिटेल, लेकिन बॉयल डाउन यही होगा वो फाइनली, कि आपको प्लेलिस्ट फाइल में सीक्वेंस नंबर बढ़ाता चला जाना है, दैट्स इट। सर इसकी ना थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो शेयर डॉक्यूमेंट है ना उसमें भी डाल देना, मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है, बाकी आपको रेलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन लगे वो इसमें से इन्फॉर्मेशन उस डॉक्यूमेंट में डाल दीजिएगा। रेलेवेंट क्या है, कमांड पेस्ट कर देंगे, सारा IP रिमूव्ड है, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो
हाँ नहीं वो तो मैं कह रहा हूँ, जो भी अभी आप बताया ना इसको आप कॉपी कर देना, मैंने थोड़ा सा डाल दिया ऐसे फॉर्मेट, बाकी आप डाल दीजिएगा उसी डॉक्यूमेंट में। हाँ हाँ, तो एक सेकंड, ये देख रहे हो ना, ये इज विजिबल, एक नोट लिखा हुआ है ना ये। तो ये बस मीडिया सीक्वेंस टैग मस्ट बी इंक्रीमेंटेड बाय 1 एवरी टाइम, यही सूटेबल है कंटिन्यूअस ब्रॉडकास्ट के लिए। बस इतना बात बोल रहा है लार्ज में। गॉट इट। ये लिंक भी डाल देना सर, लिंक डाल देंगे, ये लिंक डाल देंगे और हाँ, तो इससे हो जाएगा काम। ठीक है, सॉरी, ठीक है। मैं हो गया, मेरे को जाना है। आई थिंक हो गया हमारा आज का डिजाइन बहुत 2 घंटे डिजाइन कर लिया हमने। नहीं, वी डिस्कस रियली गुड एस्पेक्ट्स मैन, और बाकी डिफाइन कर लेंगे इसको। ठीक है, काफी है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ना आप इसमें क्या है, इंडिविजुअल डिजाइन कर लो, प्रेफरेबली विदाउट चीटिंग। नहीं सर, इसका सेशन 2 रख लेते हैं ना, ये कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। सेशन 2 रखते हैं। While we come back for session 2, we might miss out। तो अपने इंडिविजुअल के हिसाब से you create a design, फिर उसमें हम लोग इंडिविजुअल डिजाइन्स में से पॉइंट्स पिकअप कर सकते हैं if required। ठीक है, क्योंकि फिर से इतना लंबा डिस्कशन नहीं हो पाएगा। लंबा डिस्कशन क्यों करना, जो हो गया वो हो गया, उससे आगे बढ़ेंगे। करेक्ट। हाँ, उसी के लिए तो उसमें आगे क्या, अभी क्या हम लोग अभी क्या है कि मैं डिजाइन कर रहा हूँ तो देयर वर वेरी फ्यू इनपुट्स, किसी के दिमाग में कुछ था भी तो आई डोंट नो, दे वर नॉट स्पीकिंग मच। तो अब क्या है कि इंडिविजुअली आप करोगे तो मे बी वो शेयर होगा, तो वी कैन डू दैट। भाई तुम्हारे डॉक्यूमेंट में सारा कंटेंट जो डिस्कस हुआ है वो अब एक जगह डाल देंगे, लोग उसे पढ़ सकते हैं। और वो डाल दिया है, इसी में डाल दिया, वही डॉक्यूमेंट शेयर्ड है। तो सर मुझे मतलब आई काइंड ऑफ फील कि आज एचएलडी कवर हुआ है थोड़ा बहुत, थोड़ा सा रह गया के लिए। हाँ, एक नेक्स्ट सेक्शन एलएलडी का रख लेते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, YouTube पे डिस्कस करेंगे। लेट्स कंटिन्यू विद YouTube। हाँ, विल कंटिन्यू विद YouTube। अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेंज करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। हाँ, कोई पॉइंट नहीं है। वी हैव पीपल हैव क्वेश्चंस और पीपल कैन कम बैक। ठीक है, तो कल फिर सेम रखें 9 to 10। या कल नहीं हो पाएगा, परसों कर लो, एक दिन गैप ले लो लाइन से। ठीक है, चलो ओके चलो, बाय बाय एवरीवन, बाय। कोई रुकना चाहे तो रुक जाए, मैं तो अभी अवेलेबल हूँ। अभी तुम खाना बनाओगे? नहीं, आज मैंने ऑर्डर कर दिया। हाँ ब्रजेश, और भाई कैसे हो? क्या हाल है भाई? कैसा लग रहा है आपको? कैसा चल रहा है? बोरिस जॉनसन तो निकल गया आईसीयू से। हाँ, वो तो निकल ही जाता है, पूरे एनएचएस वाले सारे डॉक्टर सही कर रहे हैं। अबे मुझे तो 90% 95% लग रहा था कि वो निपट जाएगा। नहीं, मरेगा तो नहीं बे, क्योंकि बहुत कम लोग मर रहे हैं ना एक्चुअली। जो मर रहे हैं वो तो या तो यूके में रिकवरी का परसेंटेज बहुत लो था ना, इसलिए। नहीं, यूके में तो रिकवरी वाला बता ही नहीं ना अभी तक, कोई डेटा ही नहीं है रिकवरी वाला। डेटा ही 0 दिखा रहा है, पता नहीं क्यों। मतलब डेटा पब्लिश ही नहीं किया गवर्नमेंट ने। अच्छा, वही तो मुझे लगा यार यूके में रिकवरी नहीं कर रहे क्या सब अभी। अरे यार सर, यहाँ देख लो, पूरे दिन खेलते रहते हैं लोग, फुटबॉल खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इधर। एक्चुअली उन लोगों ने अप्रोच ही मतलब हर्ड इम्यूनिटी वाला लिया था ना। अरे रिकॉर्डिंग थोड़ा सा बैकफायर हुआ था वो। रिकॉर्डिंग बंद कर लो।